Good evening, guys. Good evening. Good evening. Good evening, guys. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, guys. Good evening. Good evening. Good evening, guys. Good evening. So आज हमारे साथ में है डॉक्टर सुनील पटेल सर एंड फ्रॉम कर्नावती प्रोफेसर. सो 18 ईयर का एक्सपीरियंस है इनका ओवरऑल ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग, 5 ईयर का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है इनका और 30 ईयर का टीचिंग में है. तो आपके साथ में स्पेशली आपको नॉलेज देने के लिए आए हैं. तो स्पेशल सर सुनील सर, थैंक यू सो मच आप आने के लिए और बहुत हमारे डीएसए के स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए. सो गाइस एवरीवन, आज का लेक्चर्स बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि सुनील सर अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं. तो उसमें बताएंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है, और एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट आप अपना करियर एज अ मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए आए हैं और ग्रो करना भी चाहते हैं. सो बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट ऐसे हैं कि पता नहीं होता है कि मार्केटिंग के क्या 4 P's है, क्या चीजें होती है. तो डीपली सुनील सर से जानेंगे. सुनील सर, थैंक यू सो मच, आपका स्टेज आपके लिए है और प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं. Thank you, Sandeep sir. Thank you very much for inviting me for this wonderful session at DSA. थैंक यू सर. Good evening to one and all, first of all. Okay, and I would like to congratulate each one of you that you are with at wonderful hands Thank with you. Sandeep sir. Thank you. Thank you, sir. And you are learning a lot with respect to digital marketing. Now, today I will touch upon few concepts which are very important with respect to digital marketing as well as a marketing which is into digital. So you can just look into the slide which talks about what we are going to discuss as a strategy to success. आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं गाइस. एंड ऑफ द लेक्चर्स हम लोग क्वेश्चन राउंड रखेंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है, डाउट है, उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, चर्चा करेंगे. Okay. And at any point of time, if you have any questions, you can raise your hands also. Okay. At any point, wherever you think that, okay, this point is not clear, probably you can raise your hand so that I'll be able to answer your queries. Now, here in this slide, you can see there are a lot of marketing terminologies which are being used over here. Branding, advertising, sales, marketing, target, strategy. Now, each if you take, it is a part very important and each are considered as an individual subject. But with respect to shortage of time, we won't be covering all the things, but I'll just give a brief about everything so that once you, after this particular session, if you think that, okay, what is the difference between a brand and a product, and how can you start your branding activity, and what are the important points which you need to take into consideration so that you can achieve your target. That is what we wanted to achieve. Okay, so what we are going to cover over here is we'll be talking about 4 P's of marketing, 7 P's of marketing. अभी तक आपने सिर्फ 4 P's पढ़े होंगे शायद, अभी 7 P's कहाँ से आए? So how it is differentiating, that also I'll tell you. Then what is branding? And branding is done for either product only, Right. or service, or a person. So we'll talk about in detail about with various examples I'll show you. And then after branding, advertising, which is very important because in a day you come across with digital medium, I suppose you come across 2000 ads in a day. But if I ask you right now, how many ads do you remember? Then you will start scratching your head and say, you may think that, okay, ek bhi ad yaad nahi hai. Right. Kyunki, again, if you are able to recall some of the ads, I will say that that is a great success for those marketing or advertising company. So we'll talk about various tools and techniques which are being used in advertising. So these are certain points which we are going to cover, starting with marketing. As you have been studying digital marketing, the advantage of digital marketing is what? Sandeep ji, आपने इनको digital marketing के बारे में बताया. तो digital marketing का, when we talk about conventional or traditional marketing, right, digital marketing has got certain advantage. Right. What is that advantage if we talk about it? Digital marketing का सर advantage है कि we can do narrow targeting, right? Yes. And हम बहुत कम समय में हम बहुत सारी जगह पे पहुंच सकते हैं. Execution is very fast. Very correct. Because right, you spend a lot of money into advertising और right, आपकी advertisement कोई देखता नहीं है. अगर right, न्यूज़पेपर में ऐड दी, न्यूज़पेपर की ऐड की लाइफ कितनी होती है बोले तो 5 मिनट, either morning 5 minutes or evening 5 minutes while watching TV or having tea. right, Rest the money is gone. right. So your digital marketing is what it is going to do is it will very specifically go to that demographic profile or say whatever profile you have created, it will directly go to the customer. That is the advantage of digital marketing. So your advertising is not being wasted. Right. So we'll talk about 4 P's
I'm sure you all might be aware about 4 P's of marketing, because this is something which, when you talk about any product or services, now not services, only specifically for product, 4 P's Right. is used for product. Right. आपको मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस करना है तो मोबाइल फोन एक प्रोडक्ट है, Right. अब उसको ब्रांड नेम देना पड़ेगा, उसकी Right. प्राइसिंग करनी पड़ेगी, उसका प्रमोशन करना पड़ेगा, एंड how you will be able to make this brand available to your customers. That is Right. very important. क्योंकि Right. ultimately whether it is any product, Right. till it reaches the customer, it's of no use. Right, sir. So you need to work on this 4 P's of marketing mix when you wanted to make your brand successful, Right. or लेकिन product successful. सर ये जो most of जो student है, Hmm. those are not aware of 4 P's. What is the meaning of 4 P's? And 4 P's as a business point of view कैसे important? थोड़ा सा explain करेंगे डिटेल में सर. Sure. अब जैसे you take any this water bottle, if I wanted to introduce this water bottle, Right. or say a mobile phone or anything. Right. So first P talks about product. Now I need to first identify that there is a need for this particular product in the market, Right, sir. and that is known as doing research in the market. What is the need, where the product, where there is a need for this particular product, and how this product is going to solve the problem. Right. sir. Because if you come out with a product which is going to solve people's problem, then and then only that product is going to become successful. Right, sir. You cannot force any product. If you force by say advertising and marketing, it would be only once or twice the same. But Right. if you have generate a continuous sale, what you need to do is you need to say make that you product be a solution, a problem solver. Right, sir. If it is a problem solver, then probably your product is going to, there will be a continuous need for that product. Right, sir. So any product, first we is for product. Right. Now वो product कौन से कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, Right. उसकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सी है, कौन सी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, उसकी Right. प्राइसिंग क्या है. Right, sir. So you need to decide on pricing. Right. There are various strategy like price skimming strategy, price penetration strategy. Like Jio has used price penetration strategy. Right. Sir, what is the meaning of Price penetration strategy is like you need to start with the lower price into the market. okay? And I know people make a decision. Right. I'll just show you a wonderful example with respect to that particular. Right. Now your point has insisted me to go on to this particular point. Now Okay. here, what is it you can see? It's a Bisleri bottle. Basically, right. sir. Okay. Now, what is this? A Normal- plane. Normal one. It's now let me tell you the condition. Right. Both the bottles have been manufactured in same company. Right. Water is also same. Okay. Okay. Bottle quality is also same. The plastic used is also same. Right, sir. But one is costing 20 rupees. The other one is costing 15 rupees. Right. Now, if I ask you, Sharma ji, कौन सी पसंद करेंगे? मैं बिस्लरी लेना पसंद करूंगा. 5 रुपए ज्यादा से ना देना चाहोगे? 100%, sir. So what is it? Brand. Right. Okay. Now I'll make a twist over here. Still, Right. I'll show you one more brand, which is costing 17 rupees, Right. and POPO brand. Pure. Right. Okay. Now, if I ask you which brand you are going to select, Again, Bisleri, same. why? Because the brand has been created. Right, sir. The content is same in all. Right. Same water is there. Same quality of plastic is being used in producing these bottles also. Right, sir. Now, still one more catch. Right. I'll still twist it one more. If I give you a free water pouch along with this, No. still 15, 17 or 20. मैं बिस्लरी लेने ही पसंद करूंगा. See, that is the power of brand. Right. When we talk about, when you all might be having different options to go for taking admission or doing course in digital marketing, you have selected DSA. Why it is DSA? Because it's a brand. Right. Okay, we pay mobile phones also. Right. 1 lakh rupees for iPhone, we paid. I don't think it does any magic other than Android phone. Right, sir. No doubt, there are certain features, but it does not create any difference in terms of operations. But still, people pay 1 lakh rupees, which could be a premium price for that particular brand. Right. And that is the magic of branding. Right, sir. Okay, so your question with respect to 7-piece product, Right. when you wanted to, you need to find out why your people, Jio, as you said, penetration pricing, Jio came out with services. What they said, okay, we'll give it for trial purpose. Right. People started using it for trial purpose. Then they extended the trial for next 3 months. Right, sir. Then they extended for the trial for next 3 months. Right. So then there was a obligation from the telecommunication services that you cannot spoil the market by giving just free services. Free. Okay. Because आज तुम फ्री में कुछ बेच रहे हो, Right. कोई कॉम्पिटिटर बोलेगा नहीं, ऐसा धंधा नहीं कर सकते. Right. Opposition association होगा. Right. You cannot do the business like this. Right. So what he said, when I'm not providing proper services to the customer, Right. because there was a lot of call drops at that point of time. Network connectivity के issue थे, data के issue थे. Though people were using it, but nobody was using it as a primary number. Right, sir.
So he clearly said, unless and until I provide good services to the customer, I cannot charge from it. Right. That is how we extended that offer for 1 year, and then with a low price. So they were able to catch 40% of the market customers. Okay. So that is penetration strategy. Okay. Price skimming strategy is iPhone. What iPhone does, iPhone comes out with premium price. Only one new feature would be there in the next model which is being introduced, but they will charge premium price, and there would be a line who would be waiting for that phone to be purchased. Right, sir. They are ready to pay that particular price. Right, sir. So that is how you need to decide what type of pricing with respect to competitors activity. राइट सर. सर एक यहाँ पे एड ऑन करना चाहता हूँ. ये सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, मतलब दे वांट टू स्टार्ट एज अ बिजनेस, राइट सर. अब सबसे बड़ा चैलेंज इनके साथ में ये है कि चलो सर, मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर हो गए हैं, राइट. सो आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो, जैसे इससे रिलेट कर पा रहा है कि भाई एक फ्री में दे रहा था, प्रोडक्ट सेम नहीं था, राइट. चारों, अगर बिस्लरी की बोतल थी, एक नॉर्मल पानी था, एक ये पानी था, अलग अलग, फ्री में पाउच भी दे रहे थे. तो अगेन सर, जो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हम बिस्लरी क्यों ले रहे हैं, इट्स अ ब्रांड, ठीक है. सो अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे तो कोई नहीं लेगा, लेकिन ब्रांड अच्छी है. So now read the line which is mentioned over here. Right. What you are not buying a water bottle, Right, or sir. not a water. You Right, are sir. buying peace of mind, trust, quality. Right, sir. So once you are assured that okay, you are buying Bisler, you don't have to worry about it. मेरे को पेट की कोई तकलीफ नहीं होगी. Right, sir. And neither I would be able to get sick or something like that. Right, sir. Okay, that is what when we buy, when you are selling something, you are not selling a product. Right, You are sir. selling some sort of trust, Trust. quality. Like TV खरीदते हैं तो we are not buying a TV. What we are buying? Entertainment. Entertainment. How we are going to get entertainment out of Right, it. sir. When you are going to a bank and you are availing that services, what are you expecting? You are expecting security, safety, and good services. Right, sir. So that is, every product is backed up by certain services. Every service is backed up by certain products. Right, sir. So when you talk about, there are a lot of companies Right. and they wanted to start the digital business, what they need to do is, see, every company will have some major competitor. Right, sir. So we need to find out what that major competitor is. Right, sir. So when you talk about telecommunication services only, there were many small players at that point of time. Right, And sir. जैसे Jio आया, Aircel वो सब सब market उनका में दिया. settle. Right, sir. Only those powerful players were able to survive in the market. Right. Now their market share also started going down. Right. So you need to identify who are the major players, what they are doing it, and how you can differentiate your product. Right. That is branding. Branding will help you out in doing differentiating your product with competitors. Right. If you look into the definition of brand also, if you I'll just take you to the definition of brand. What is brand? A brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them intended to identify the goods or services of one seller or a group of sellers to differentiate them from the competitors. Right, sir. So when you say this brand is good, Right, sir. any specific brand, you will have some USP in your mind Right, sir. that I have bought this brand because of this particular reason. Okay, iPhone, you're buying it because of its design, security, Right, sir. and status. That is also a perception which people have in their mind. Then. When you buy any product, any damn product, you can say if you're buying a laptop, Right, sir. you are buying Dell. Then. And see, a simple, very good example, Nike shoes, you Right. buy it, you're ready to pay 5,000 rupees. Right, sir. But if that brand logo is not there on it or brand name is not there, But and you- even if it is produced in the same company, you may not buy that shoes even for 1,000 rupees. Right, sir. So what is that you are paying for? You're paying for Brand. brand. Right, sir. And I'll take you to the steps, means how you can build a brand. Right. What are the things you need to take into consideration while branding? So this is how you need to identify the pricing of the competitors, what promotional activities they are doing it, Right. how you can differentiate your promotional activities, and where your product will be available. Right, sir. Because if you are very clear with this 4 piece कि मैं XYZ चीज बना रहा हूँ और वो चीज का ब्रांड नेम ये होगा, उसकी प्राइस ये होगी, and this is how it will reach to the customer through various intermediaries. The number of intermediate, wholesaler से जाएगा, retailer को जाएगा, and then you can go to the customer. Right, sir. So that clear picture you need to have. This is with respect to product. Right, sir. So hope it's clear or Yeah, any yeah. confusion, any question. Then. Now 7 P's I said. Right. Okay, so 7 P's is something more. Right. 3 more P's have been added. Okay. Now this is very specific with respect to services. Right. And when we say today's our GDP contribution also 70% comes from services. Services. Right, sir. So now services, say if you are starting a hotel or a restaurant, Right, sir. now how
you can get more number of footfalls at your restaurant. Right, sir. What you will do? Marketing. What marketing you will do? मतलब मैं फेसबुक करूंगा, मैं इंस्टा करूंगा, बट उसमें क्या करोगे? मतलब उसमें क्या? एड्स. हाँ नहीं, उसमें एड्स किसकी करोगे? वही अपना लोकेशन. तो पहले तो लोकेशन एम्बियंस अट्रैक्टिव बनाना. बहुत बढ़िया सर. सो दैट इज फिजिकल एविडेंस. जो Right. एक और पी है राइट वो फिजिकल एविडेंस. आज लोगों को जो दिखता है वो बिकता है. इट इज Right. वेरी क्लियरली सेड. हाँ. जो दिखता है वो बिकता है. राइट सर. और मोदी जी भी वही कर रहा है. राइट. आज विकास, Right. when we talk about the political scenario and the branding and marketing which is being done, the things which people can easily observe, Statue of Unity देखो, राइट. the name of the country India is across the globe. राइट. People are recognizing India. A lot of foreign investors are coming over here and they are investing over here. That is what, that is visible. So Right. physical evidence. आपको simple example देता हूँ. आप you are going to some unknown place. राइट सर. कार में जा रहे हो, दो होटल आसपास में है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ. राइट. ओके, एक पे ब्यूटीफुल एम्बियंस है, गार्डन है, अच्छा है, और एक ढाबा जैसा है. राइट. अब शर्मा जी कहाँ जाओगे? मैं तो बढ़िया होटल में ही जाऊंगा. राइट. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे एम्बिशन अच्छा है तो सर्विस भी अच्छी मिलेगी. मतलब मतलब वो एक्सपेक्टेशन. अगर फ्रेंड ने बोला कि वो होटल में कभी मत जाना, वहाँ ढाबे पे अच्छा है. हाँ, तुम्हें ढाबे पे ही जाऊंगा. Obviously, because you word of mouth or you will look into the review. Right. Today, आज digital marketing है, तो people to unknown places they look into the review and then make a decision. राइट सर. That where I need to go. राइट. Okay, so that is going to attract you first. Physical evidence. अगर रिव्यू भी नहीं है, दोनों में से ऑप्शन है मेरे को कहाँ जाना, तो मैं सीधा वहीं पे जाऊंगा. राइट. आज फॉरेन में कहीं जाते हो या कहीं भी, we obviously look into physical evidence. राइट सर. आज बिजनेस करना है, पार्टी बड़ी है, वो हम्म. कैसे पता चलेगा? हम वो बोलते हैं बाहर गाड़ी है, ऑफिस में डेकोरेशन अच्छा है, 100%. तो ये पार्टी बिजनेस अच्छा है. और इससे सर 100% में एक वर्कआउट ऐड करता हूँ कि सेम सर्विस अगर एक छोटी जगह में दे रहे हैं, सेम सर्विस अगर बड़ी जगह पे दे रहे हैं, तो वो बड़ी जगह का सिर्फ पैसा बोलते हैं ना कि मतलब जगह अच्छी है तो चार्ज भी आप पैसे ले सकते हो. राइट सर. That's why आज होटल ताज में 500 रुपए की चाय मिलती है, बराबर. लोग देते भी है, देते और वो हैं. चाय का टेस्ट सॉरी टू से हाँ. वुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, Right. जबकि वो अपने टफरी वाले की चाय बढ़िया होती है. राइट सर. बट पीपल आर रेडी टू पे. And- व्हाई? बिकॉज़ ऑफ व्हाट? सर्विस. सर्विसेज. आप वहां जाओगे, दे विल पुल द चेयर एंड आस्क यू टू सिट. वहां पे आपको दे विल गिव यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलकम, और आप उसको 500 की चाय के ऊपर टिप भी देखे होगे. राइट. Okay, so this is physical evidence is one more P which is added. Then process. Process. आप जो होटल का एग्जांपल है, आप वो होटल में गए, वहां पे बैठे और ऑर्डर दिया. ऑर्डर देने के बाद आपको आधा घंटा वेट करना पड़ा, तो क्या हुआ? नहीं, वो नेगेटिव इंप्रेशन है सर्विस. So that is the process you are expecting. आज मैकडोनल्ड्स या कोई भी फास्ट फूड पे जाते हो, व्हाट इज इट? दे आर नोन फॉर सर्विसेज. वहां पे वो एक टाइमर रखते हैं, सेंड टाइमर, और जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो उल्टा कर देते हैं, और 1 मिनट में जैसे ही सेंड खत्म होती है तो बोलते हैं आपका ऑर्डर, वी हैव सर्व्ड योर ऑर्डर इन 1 मिनट. राइट सर. सो दैट इज व्हाट दे टॉक अबाउट, दैट ओके वी सर्व द कस्टमर एट अ फास्टर पेस. कस्टमर क्यू में नहीं खड़ा रहना चाहिए. राइट सर. जितनी ज्यादा वेटिंग कराओगे, पेशेंस. मैं इसको एक एग्जांपल को बहुत अच्छा लेता हूँ. हम पानीपुरी की लारी पे जाते हैं, तो पानीपुरी वाला 3-4 जनों को खड़ा रखता है. अब वो एक खिला के देता है. अब वो उसमें पता है कि 4 ऑलरेडी 10 वेटिंग पे आ गए हैं, वो 4 खत्म नहीं होंगे तो 4 को सप्लाई नहीं करेगा. कल मैं एक पानीपुरी की लारी पे गया, वो रेडीमेड पानी पूरी जो है बना के रखता है, पानी की गिलास देता है कि आप खा लीजिए. तो ये बहुत अच्छा है कि आप मींस यू डोंट हैव टू सी. उसने लाइन कम करने की. राइट. चलो इस पे आई जस्ट रिमेंबर वन मोर एग्जांपल. राइट. आपने डिज्नी वर्ल्ड का नाम सुना? हाँ जी. डिज्नी वर्ल्ड, they were the first one to introduce that particular concept, और वो concept आज इंडिया में भी हो रहा है. राइट सर. संडे को वहां पे बहुत क्राउड रहता था. राइट. तो क्राउड रहेगा, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज, तो इतने डॉलर खर्च करने के बाद वहां पे लोग आएंगे तो बोले क्या, दे विल पास नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ कि संडे तो कभी जाना ही नहीं है, और वहां पे पैसे वेस्ट हो जाते हैं. यू आर नॉट एबल टू, बिकॉज आधा टाइम तो वहां लाइन में खड़े रहना हो जाता है. तो उन्होंने क्या किया था, कोई आइडिया? अभी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे हो रहा है, व्हाट इज दैट? प्री बुकिंग नहीं, फिर अपना वो एसएल वर्ल्ड है, वहां पे भी होता है ओके एक्सप्रेस एंट्री या फास्ट पास उसको बोलते हैं. ओके. दे हैव क्रिएटेड फास्ट पास. मैं उसके पैसे 5 गुने लूंगा. जैसे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
350 की टिकट है और वो 1000 रुपए की टिकट है। ओके मैं आई वांटेड पीस ऑफ माइंड, मैं संडे को जाता हूँ, आई नो दैट संडे देयर विल बी अ ह्यूज रश ओवर देयर, राइट सर सो व्हाट आई विल डू इज मैं ऑनलाइन बुकिंग कर दूंगा, 1000 रुपए की टिकट लेके जाऊंगा और वहां पे मेरे को लाइन में खड़ा नहीं रहना, राइट सर और मैं कम टाइम में सब कुछ घूम के आ जाऊंगा। 100% सर बराबर मैं समझ गया तो ये इवन तिरुपति बालाजी में भी यूज कर रहे हैं ओके यही टेक्निक, राइट कि पहले क्या है, तिरुपति बालाजी में आपको रात भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है सुबह दर्शन के लिए, ओके और दर्शन तो वो बोले आए हो गया चलो, हां मीन्स 10 सेकंड भी आप नहीं खड़े रहते और रात भर जाइए, उतना टाइम आपको वेस्ट करना होता है, राइट बट दे हैव क्रिएटेड नाउ टू मैनेज द क्राउड इन प्रॉपर वे। ओके तो अब क्या करते हैं, वो एक बैंड लगा देते हैं ओके जिसमें आपका टाइम लिखा हुआ है, ओके और वो बोलेंगे इस टाइम पे आना है, उनको बाद में आधा घंटा 1 घंटा ही लाइन में खड़ा रहना। ओके सो दे आर मैनेजिंग द क्राउड, एंड वो बाकी का टाइम आप हम्म। साइट सीइंग, आसपास में खाना वगैरह करना है तो आप कर राइट सकते हो। ओके So this is how they are managing the crowd. That Right. is what process. प्रोसेस आज बैंकिंग में भी हम्म। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, बैंकिंग में आप बैंक में जाते हो, छोटी सी ब्रांच है, वहां पे एक ही टेलर है, राइट तो पैसे जमा करने हैं या लेने हैं, तो Right. लाइन ज्यादा होगी तो क्या होगा, मतलब वेट करना Right. पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल गो, यू विल थिंक मेरे को वहां पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, वो वो time- परसेप्शन क्रिएट हो ही जाता है एक्चुअली सर अब तो उसके लिए बैंक ने क्या किया, बैंक ने देखा गया ऑन एन एवरेज एवरी डे देयर आर लॉट ऑफ पीपल वेटिंग इन अ क्यू, राइट सो सर व्हाट दे नीड टू डू, उन्होंने either they have to expand the space Right. and create another teller, राइट और दूसरा है उन्होंने मशीन खड़ा मशीन लगा दी कि बराबर जहाँ पे पैसे आप विड्रॉ करने के लिए तो एटीएम है, राइट सर डिपॉजिट करना है तो वहां पे मशीन करना है, 100% और आपको पता नहीं है कैसे करना है तो वहां पे एक बंदा खड़ा कर दिया जो आपको सिखाएगा कैसे करना है, तो एक बार आपको दिखा दिया तो नेक्स्ट टाइम यू कैन डू इट ऑन योर ओन। 100% सो दिस इज हाउ द प्रोसेस, राइट यू टॉक अबाउट एनी। अब यहाँ अपने रेस्टोरेंट में, यहाँ अहमदाबाद में जैसे ही भीड़ बढ़ती रहती है, संडेज को बाहर जाना मुश्किल होता है, अगर संडे बाहर खाना है तो 7 बजे से पहले चले जाओ तो जगह मिलेगी, वरना नहीं। राइट तो वो कैसे मैनेज करते हैं, संडे एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हायर करते हैं बराबर कि किसी को बोलेंगे भाई संडे आ जाना, तो विल गिव यू योर वेजेस विद रिस्पेक्ट टू दैट, राइट एंड दे विल क्रिएट टोकन सॉर्ट ऑफ थिंग कि Right. वहाँ केओस और झगड़ा ना हो, क्योंकि Right. कोई फैमिली है मेरे बाद आई हुई, उसको हाँ. पहले जाने दो, तो बोलेगा हम पहले आए हुए, हाँ, वो झगड़ा हो जाएगा। तो Right. दैट शुड नॉट हैपन, सो Right. दे हैव टू मैनेज द क्राउड, दैट इज Right. प्रोसेस व्हेन वी टॉक अबाउट। राइट तो सर्विसेज में स्पेसिफिकली द सेकंड पी इज प्रोसेस, वो 4 पी तो है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो करना ही है, राइट सर उसके अलावा फिजिकल एविडेंस, प्रोसेसेस, एंड ये सब करने के लिए क्या चाहिए, राइट बंदे। बंदे Without people you cannot do it. राइट सर So this is how 7 plays a very important role. राइट सर आज if you wanted to create this DSA into a big brand, राइट सर what you need to do? पीपल आपकी सर्विसेज है, राइट सर सर्विसेज है तो people चाहिए, राइट सर without people you cannot go ahead. राइट Physical evidence, ऑफिस अच्छी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, you need to have lot of activities, lot of positive word of mouth should go. राइट सर और प्रोसेस सिंपल होनी चाहिए, सिंपल कि मेरे को एडमिशन लेना है तो ऐसा नहीं है, हाँ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। राइट जहां पे भी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इट टेक्स टाइम, पीपल विल चेंज द माइंड, दे विल गो फॉर नहीं वो 100% सर ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पे अपन जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे ये करना है, वो बोलता है कि ये करना पड़ेगा, तो अपना माइंड एक्चुअली चेंज हो जाता है, वी आर गोइंग टू टेक द अनदर डिसीजन। राइट सर 100% आपसे तो दिस इज हाउ व्हेन यू थिंक अबाउट एनी प्रोडक्ट के बारे में, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ओनली 4 पीस। Right. व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज, नाउ सर्विसेज में मैंने बोला 70% ऑफ जीडीपी फॉल्स इनटू द सर्विसेज। राइट तो सर्विसेज में इतनी सारी कैटेगरी है, इट कुड बी होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। आज आप इंश्योरेंस इतना बड़ा मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स, दिस यू नीड टू सर्व द कस्टमर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पता नहीं है कि मेरे कस्टमर कौन है बराबर सर और किसको मिलना है, किसको जाके मिलना है। बराबर सर तो शर्मा जी, मैं एक अपने कैंगन का नाम सुना हुआ है? हाँ सर कैंगन वाटर हाँ, Right. वो कितने का आता है? वो बहुत महंगा है, मतलब 1-1.5 लाख रुपए की या 2 लाख के हाँ. बहुत जाता 2 है। लाख प्लस। हाँ अब तुम तो पहले ही सोचोगे कि भाई ये 2 लाख का कौन खरीदेगा, राइट बट मैं तुम्हें बता दूं कि ये कस्टमर है, जाओ उनके जाके मिल जाओ, 100% आपको हो जाएगा। राइट सर जिनके घर पे BMW बार पड़ी है, वही बंगला है, वहां पे वही चले जाओ। कस्टमर और इनके यूएसपीस, राइट इनका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट करता है, ये नॉर्मल पानी जैसा नहीं है, राइट हाँ वो मतलब अलग ही पानी है। अलग पानी है। हाँ. और इसके फायदे, देयर आर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स राइट सर व्हिच सेज हम्म. कि आपकी बीमारी मिटाएगा। हाँ अगर कैंसर है तो कैंसर है, या हम्म. रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपने बहुत पैसे खर्च किए मगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो देयर आर एविडेंसेस दैट दिस हैज प्रूव्ड इट। राइट सर सो ऐसे एविडेंसेस होने चाहिए हम्म. which will help you, that Right. becomes an USP। जैसे ही प्रोडक्ट का
जैसे मैंने बोला कि ब्रांड है तो हम्म। ब्रांड का डिफरेंशिएशन होना बराबर। चाहिए. दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन सिंस मेनी इयर्स. आप गूगल पे जाओ एंड राइट दिस पर्टिकुलर ब्रांड नेम, यू विल गेट लॉट ऑफ आर्टिकल्स व्हिच विल सपोर्ट दैट दिस ब्रांड इज राइट so this is about marketing. राइट Now we'll come towards see marketing करने के लिए very important. ये जरूरी, जैसे मैंने बोला कि आपको कौन से कस्टमर है, आप पूरे अहमदाबाद में घूम लोगे, बोले कोई 10 कस्टमर को मिला, कोई बोले 2 लाख वाला लेने के लिए रेडी नहीं है, because you are hitting at the wrong place. राइट You need to hit the right customer. If you are able to hit the right customer, रितेश अग्रवाल कौन है? वो ओयो का फाउंडर. He was the person who looked into the 90% of the market. राइट सर क्या था, उसने क्या किया, उसने कुछ ज्यादा नया नहीं किया. अब लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो कोई भी कर सकता है वैसी चीजें, हाँ वो बट लेकिन उस टाइम पे वो कुछ सोचा इम्प्लीमेंट, Right. क्योंकि होटल्स जो भी आज है वो पहले भी थी. Right. बस स्टेशन के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने होटल थी, उनको ही उन्होंने टाइप जस्ट मॉडिफाई कर मॉडिफाई और बेसिक नेसेसिटीज जो Right. चाहिए वो ऐड कर दी. राइट जो 1000 रुपए रेंट थी वो भी आज 1000 रुपए, मगर पहले 1000 रुपए में कुछ नहीं मिलता था, आज 1000 रुपए में बहुत कुछ वो आपको बेसिक एसी वाईफाई वो सब मिलता है. राइट सो दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्व. यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. और ये क्या 90% ऑफ द मार्केट. आज ताज है, हिल्टन है, वो सब होटल्स है, राइट चेंज ऑफ होटल है, एंड देयर ओनली 10% ऑफ द पीपल वुड बी गोइंग इट, राइट but rest of the 90% of the market were going to this particular one. So Right. he targeted a huge market, राइट and that's why they were able to get that particular thing. So segmenting the customers, कौन सी segment आपका customer होगा, बच्चों के लिए है. So if you talk about जैसे retail outlets है, फर्स्ट क्राई, राइट फर्स्ट क्राई वो जिन्होंने निकाला, तो वो हाँ. क्या है, फर्स्ट क्राई एज द नेम सजेस्ट, यस कि जब बच्चा रोता है हाँ तो अब उसको तो कपड़े पहनाने की वैसे जरूरत नहीं है, राइट बट उसके लिए भी प्रीमियम क्लोथ्स. राइट सर सही बोल रहे हो सो दे आर एबल. और वो बोले अब गांव में जाओगे या रूरल मार्केट में, तो बोले जो भी है घर से ही जो कपड़े है वो मैनेज कर देंगे, जब तक वो बड़ा नहीं होता, बड़ा हो जाएगा बाद में कपड़े ले लेंगे. राइट बट यहाँ जो प्रीमियम मींस द क्राउड स्टेटस सोसाइटी है, राइट सर वहां पे तो उनको चाहिए, बोले हाँ. फर्स्ट क्राई से कपड़े लेके आए, Right. बोले अब छोटे Premium. बच्चे, हाँ प्रीमियम कपड़े, दे आर रेडी टू स्पेंड 500 रुपीज. अब वो एक महीने का है, उसके लिए 500 रुपए के कपड़े खरीदे. राइट So that is how you need to identify what segment you are going, and then you have to target those customers. राइट Or positioning it. आज let me tell you, ठंडा मतलब कोको कोला जैसे positioning. पोइस्टिंग So this is something, इसको लगा डाला तो life, जिंगल वाला that is Tata Sky. टाटा स्काई That means we continuously we have listened to this particular tagline, and this देश का नाम अब कौन सा है? टाटा Tata. राइट Okay, so all taglines continuously since many years, if we keep on listening, probably that comes to mind. अब आप tell me. सर एक इंटरप्ट करता हूँ. बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, हाँ, क्या ऐसा उसमें एक पॉइंट एड ऑन ऐसा होता है कि दे आर टारगेटिंग द नॉट राइट पीपल? क्योंकि मुझे ऐसा बहुत सारी बात देखा हुआ है कि लोग सर्विस लेके जाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी स्टार्ट करते हैं और फिर आके बोलते हैं कि सर है ना वो तो इंटरेस्टेड नहीं था. सो मुझे एक चीज हमेशा लगती है कि राइट लोगों को राइट जगह पे टारगेट करना बहुत जरूरी है. जैसे अगर मैं एक ऑयल बेच रहा हूँ, हेयर ऑयल बेच रहा हूँ, और वो उन लोगों के लिए जिसके बाल उड़ चुके हैं, और मैं किसी और को लेके जाता हूँ जिसके घने घने बाल है, तो वो लेगा ही नहीं. तो राइट पीपल को पकड़ना बहुत जरूरी है. इसमें एक क्वेश्चन मुझे लगता है, हाँ. ये यही क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ कि Right. लाइक द राइट वे ऑफ मार्केटिंग और सेलिंग इज व्हाट. आप गंजे को कंगी बेच के आओ तो आप मार्केटिंग मार्केटिंग अच्छी है. राइट सर आई एम अ बाल्डी पर्सन, इफ यू सेल मी अ कोम राइट and you need to tell me what are possible reasons. राइट अब हो सकता है आपको खुजली हो तो वो कंघी से आप आप खुद जा सकते हो. राइट सर means अब what I wanted to say, आप जो बोल रहे हो, you need to go to the right customer. Right. पहला तो ये है. ये तो अगर राइट कस्टमर नहीं है हाँ. तो भी आपकी मार्केटिंग इतनी होनी चाहिए कि ये कुछ बता रहा है वो मेरे काम की चीज है. राइट सर अब हो सकता है कि अगर रियल एस्टेट वाले के पास आप जाओ, वो बोले मेरा तो वैसे ही बिक रहा है, कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट हैव टू गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, मेरे पास तो वैसे ही फुटफॉल्स बहुत आ रहा है, मैं क्यों मैं डिजिटल मार्केटिंग में दूं? सर वैसे ही आपके पास तो आ रहा है, राइट मगर आपके पास और ज्यादा आया तो क्या फायदा होगा? 100% सो यू नीड टू कन्विंस हिम इन दैट वे दैट जो आपका हो रहा है वो तो रेगुलर होएगा, 100% बट बाय स्पेंडिंग अ लिटिल अमाउंट you will be getting more customers. 100%. So there are many ways and means to convince the customer. Right.
So that is what you need to target your right Target. customers, or positioning. You need to create a image in the mind of Image. customer. DSA means what? टैक्टिक, तो हम लोग एक टैगलाइन इस पे एक ऐड ऑन कर रहा है कि अब थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल सीखेंगे, तो हम लोगों ने जो So immediately after completing the course at DSA, probably you think that okay, you can go to some place and Right. say आपकी brand बनानी है, मैं बना सकता हूँ. I've Right. got ways and means to create a brand. Right. अब I'll tell you like आपने शायद सैंडलवुड वाला अभी बहुत जगह पे होर्डिंग लगा हुआ है. सैंडलवुड वो Okay. अपना ही स्टूडेंट है हाँ, जिसमें ही इज टेकिंग केयर ऑफ एंटायर ब्रांडिंग, ओके, एंड उसने स्कीम बनाई है, थीम बनाई है. Okay. अब उसके लिए पोजिशनिंग, लाइक लेट मी शो यू सम वीडियोस विद Sure. रिस्पेक्ट टू Sure, पोजिशनिंग sir, कि दिमाग में पोजिशनिंग कैसे. आज वोडाफोन ने जुजू एड आती थी. राइट, जुजू, राइट सर, यू कैन ओपन दिस लिंक, कौन सा नेट कनेक्ट, दिस ये वाला? लिंक ठीक है, उसको ठीक। कॉपी दैट लिंक. जूम चालू करके वहां से लाइव ले ले, ओके, और थोड़ा इधर से हाँ अभी ये कॉपी कर लो. हाँ वो लिंक कॉपी कर लो और ओपन करो. I'll just show you. It's a wonderful ad. एक हाँ वो ही. गाइस, मजा तो आ रहा है, तो टाइप कीजिए जबरदस्त, एवरीवन टाइप कीजिए जबरदस्त. Any questions still? क्वेश्चंस भी आए, लिख के रखिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके ग्रेट, हाँ जबरदस्त लिखते रहिए. Now this is an ad which Vodafone has created. I'm sure you all might be remembering the ad of Zuzu ads, Zuzu. which they used it for a long campaign. But in 2017, they created this wonderful ad of old couple, and just see these ads, and then I'll tell you one by one what they were trying to, how they were trying to position that particular product in the mind of customer. So, full screen. What is that, man? So both these couples means this single couple is shown in different days. They are going for the second honeymoon, and see how wonderfully this Vodafone has created this ad and how what they are trying to position. Okay, so what was over here is they were trying to position that first is mobile phone is not only for youngsters, Right. or say video calling, the facility can be used by elders also. Okay, so and they are going for a honeymoon, and how they are using the data means it is when we say our grandparents, if we talk about, we tell them that okay, use this phone, they will say that no, I cannot use it. So probably this advertisement, this campaign shows that it is for everyone. Okay, still you can see wonderful all 7 days they have
Okay. So you have seen what was common in all this advertisement. You can type it. गाइस टाइप कीजिए क्या था कॉमन क्या था एडवर्टाइजमेंट एवरीवन क्विकली फास्ट गाइस फास्ट टाइप कीजिए डेटा कनेक्टिविटी स्टोरी टेलिंग ओके नेटवर्क 4G सर्विस ओके ग्रेट Okay. So what you said is very correct, but they stick to one theme. Okay. And same couple was used. Say, think about in case if different couples were used, that brand would not be positioned in the mind of customer. So whenever you think about any advertisement, probably the same type of themes would be conducted. So I was talking about sandalwood. Right. जैसे ही lemon tree, आप होटल की बात करो तो वो lemon tree में जाओगे तो the first when you enter into it, you will get a lemon fragrance. राइट ओके You go to the reception, you will get a lemon fragrance. You go to the room, you will see everything would be in lemon color. You go to the washroom, hand wash would be in lemon flavor. Okay. Soap would be in lemon flavor. They wanted to emphasize that this is you have entered where lemon is. लेमन ओके So same way, any theme it could be. Right. So here also the theme was what they wanted, that data connectivity is there, and everything what was done by youngsters राइट that can easily be done by old people. Also. Right. That was the message they wanted to convey. Right. That's why this old couple was very famous at that point of time, because like using uploading photos, Right. being live on Facebook, मैप का यूज करना राइट or tattoo banana, Tattoo. see all those things which are being done by youngsters, probably those things were being captured over here. राइट So that is how positioning plays a very important role. You Right. need to position either in the form of benefit, either in the form of USPs, either in the form of punchline, which I give you Right. example. So segmenting, targeting, and positioning. Again, as I said, all these are individually marketing, part of marketing. You say advertising, branding, segmenting, targeting, positioning, understanding consumer behavior. Everything is part of marketing. Right. So it's a very vast subject, and this everything can be. Means it can have be a separate book on each. Right. of this. So moving ahead. So this I have showed you that people buy not by brand, but Right. they buy the services behind that particular. Right. Today, when you buy AC, you are not buying AC, which gives you what you're buying. You're buying a peaceful sleep. You are expecting that गर्मी में मेरे को आराम से नींद आ जाएगी, अच्छी नींद आनी चाहिए. That is what you are going to buy. So, as very well said by Stephen King, products are made in the factory. Right. A brand is something which is made by the customer, Right. and a product can be copied by the manufacturer, Right. but brand is unique. Unique. It cannot be copied. Right. A product can be quickly outdated. Right. There are many products which have been outdated from the market, but a brand is something which will go for years and years. to Yes. come. There are many brands which are there in the market since many years. Say 100 साल पुरानी banks भी है, Right, sir. और hotels भी है, and there are many products also which are available in the market. So we can say buildings age and become deteriorated. Right. बिल्डिंगें पुरानी हो जाती है, खंडर हो जाती है, मशीन से wear out हो जाती है, Right. लोग मर जाते हैं, but what Brand. lives is a Brand. 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 पार्ले जी कितने सालों से चल रहा है. Right, sir. There are many such brands which you can see. So similarly, all these are brands. ये लोग चले गए, मगर फिर भी उनकी brand. Right, Yes, we sir. can see. Right, sir. Narendra Modi is a big brand. Right, sir. Where we can say, if you remember, lot of things are sold when associated with Narendra Modi. Right, sir. आपको Freedom 251 वाला मोबाइल याद है, जो एक स्कीम आई थी, Right. वो नरेंद्र मोदी के उसकी वेब पेज पे ही नरेंद्र मोदी जी का फोटो था. तो वो एक ट्रस्ट दिलाता था कि ये 251 में मोबाइल मिलेगा आपको. Okay. बट वो भी स्कैम था, हाँ, वो नहीं मिला था. Right, sir. So people are using this brand name association. अभी बच्चन ने बोला ना उसका, nobody can use the brand name or a voice without his permission. Right, sir. Okay. क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह misuse होता है. Right, sir. But when we say all these are legends, these are brand, Right. and they are not there, but still that names are alive. And Right. so this is what we talked about it. Again, lot of differences with respect to brand. A few of them I told you that brand is something which will go for ages and ages. You can just go through it. I'll share this with you. Sure. Okay. You can share it with the students. So moving ahead, very important thing.
5 product levels. Right. When we talk about when you are hungry, what is that you would like to have? खाना खाना है, हाँ. रोटी खाना है. Right, sir. हाँ, अब रोटी खाना है. Right. और it depends upon the time which is there. Right, sir. कि या पॉकेट में पैसे है उस पैसा हिसाब है. से सोचेंगे. Right, sir. Okay. So basically when you are hungry you are thinking that you get something to eat. Right. But if your wallet is full of money, Right. probably you will think that I should go to a wonderful place where I can Right. have something. So difference between need and want. Right, sir. That is, basic need is what? A food you Food. want to fulfill your hunger. Right, sir. And want is you want specific. Right. मैं दाबेली से भी काम चला सकता हूँ. 100%. मैं बोले मैकडी में का बर्गर मिले तो ही मेरे को Right. संतोष होगा. So that becomes a want. When you want a specific product, Hmm. फोन कोई भी है तो चलेगा. Right, sir. बातचीत ही करनी है. बातचीत ही करनी है. Right, sir. But नहीं लेकिन आईफोन Apple होगा होगा तो ही हाँ आईफोन होगा तो that becomes Hmm. your want. Very Right. specific. Similarly, when we talk about hotels or services, Hmm. they mainly are core benefit. Hmm. Now I'll just give you an example with respect to hotel. Right, sir. आज होटल में आप जाते हो तो what is that you are expecting? होटल में मतलब मेरे का मेन चीज तो एक तो क्वालिटी फूड मिले, ठीक है, और सर्विस मेन चीज तो सर्विस पे मैं टिका हूँ. Okay. राइट. और एम्बिशंस भी मैटर करता है. Okay. Good ambience. Yeah. Good. Today when people are buying, I'll tell you real estate का एग्जांपल मैं फिर से यहाँ कोट करना चाहता Right. हूँ कि रियल एस्टेट में आज सब स्कीमें बेच रहे हैं तो क्या बेचते हैं स्कीम में? वो तो सपने बेच रहे हैं, मतलब वो That is true, very Right, correct. They are trying to sell you, but on what basis? उनका USP क्या है? यूएसपी है कि भाई मतलब Amenities. आई मीन आज बोले we have got 60 amenities. Right. अब उसमें से आप कितनी amenities use करने वाले? बहुत मोस्ट बोलते स्विमिंग पूल है, ये है, वो है. राइट सर. So that is what they are trying to राइट सर. say that okay, all your basic needs, all your additional value added needs we are going to serve. But when you talk about आज मैं होटल में जाता हूँ तो core benefit मेरे को अच्छी नींद आनी चाहिए. राइट सर. कोई बेनिफिट था मतलब. अच्छी नींद आएगी तो होटल में रहना. So अब you need a basic bed होना चाहिए अच्छा. हाँ, बेड अच्छा होना चाहिए. अब बेसिक प्रोडक्ट वहां पे वॉशरूम होना चाहिए. राइट. टवल होना चाहिए. राइट सर. गर्म पानी आना चाहिए. वो बेसिक प्रोडक्ट में आता है. कोर तो क्या है? आई एम गोइंग ओवर टू स्टे, आई एम गॉन फॉर अ मीटिंग टू सम प्लेस. मेरे को एक रात वहां पे रुकना है तो वहां पे नींद आनी चाहिए. और बेसिक कोर बेनिफिट आई हैव टू पास द नाइट. राइट सर. एंड देन बेसिक उससे थोड़ा बढ़ के आता है कि थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, एसी चालू होनी चाहिए. फिर वो एक्सपेक्टेड, अच्छा. उसके ऊपर एक्सपेक्टेड आ जाता है. अच्छा, ओके. एक्सपेक्टेड, अब तुम सोच रहे हो कि बेडशीट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. राइट सर. टवल है तो फ्रेश होना चाहिए. राइट सर. गीजर होना चाहिए, एसी होना चाहिए. Right. These are something which are expected. So here you can look into it. These are the same thing. Now augmented, तो augmented उससे भी ज्यादा होगा. राइट. उससे what you are expecting, तुम्हारी expectation के अलावा तो है, but वहां पे अच्छे means immediately आप मैं मैसेज करो या फोन करो तो तुरंत सर्विस बंदा आ जाना चाहिए. आपका लगेज रूम पे ले जाए, आपको अच्छी तरह से ट्रीट करे, वेलकम ड्रिंक मिले. That is what your augmented service. राइट सर. And potential product, it is again beyond that. कि उससे भी ज्यादा क्या कर सकते हैं कि वो कैब सर्विस आपके लिए कर सकते हैं. आपकी कहीं पे आपने मेंशन किया था कि मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छी लगती है, आपने डिजिटल मार्केटिंग में कहीं पे मींस फेसबुक या कहीं पे लिखा हुआ है कि यू लाइक दिस चॉकलेट और समथिंग लाइक, वो आपको गिफ्ट दे दे, वेलकम गिफ्ट हो या समथिंग व्हिच क्रिएट्स अ डिफरेंस. ये होटल में गया था तो ये मेरे को डिफरेंस था. राइट सर. So that is what today most of the big hotels they try to potential product. कि आज when they are coming over here and they are staying over here, वो यहाँ से जाए तो मेमोरीज लेके जाए कि फिर से यहीं पे आना है. राइट सर. वरना बेसिक तो वहीं पे वो हर जगह मिल जाएगा. 100%. So he need to get something additional from that. So this is how 5 product levels you need to think about it. अब कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वहां पे मींस आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट ले लो तो वहां पे बेसिक तो वड़ा पाव, वही वड़ा पाव बेच रहा है जो लारी वाला बेच रहा है. बट यहाँ पे क्या है? क्लीननेस, हाइजीन. वहाँ कंप्यूटराइज बिल दे रहा है आपको. जो बंदा है वो हेड कैप पहन के बैठा हुआ है, ग्लोव्स पहन के बैठा हुआ है, बेसिक हाइजीन मेंटेन कर रहा है, ऑयल रिपीट यूज नहीं कर रहा है. So that comes into expected कि तुम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो. और वहां से बोले आप पार्सल को पैक करना है तो पार्सल में भी he is packing it in such a way that it becomes easy for you to carry it. राइट सर. So something extra. अब उसमें बोले आपको इसमें मेरे को पोटेंशियल या ऑगमेंटेड लेवल पे जाना है कुछ ज्यादा ही कि कस्टमर ने सोचा ना, बोले तो वड़ा पाव. राइट सर. तो एक बार आप खाने जाओगे तो आपको लगेगा कि मेरे को यहाँ आना है. राइट.
because you look into the ambience, Right. you look into the services being provided. So something what adds value to the basic product or core product, that is going to be expected, that is going to, so that's why you can see this is potential product, a big Right. circle is there. You Right. need to take care, वो सब तो करना ही है. Right. वो 4 ये तो सब सही. हाँ, लेकिन जो इसके अलावा आपको बेसिक है, हाँ. आज जैसे ही आप बोल रहे हो कि मेरे को ये एकेडमी को बड़ा बनाना है, Right, sir. एंड इफ यू वांटेड टू ऐड वैल्यू, कस्टमर जो भी आता है उसको वैल्यू एडिशन होना चाहिए. इफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग प्लेस्ड विद वेरियस कंपनीज, Right, sir. you will be happy to see. Right. Okay, and you will have good relations, and then you can build up your brand. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ जो कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं वो तुम 100%. कुछ एडिशनल सर्विसेज, Right. वैल्यू एडेड है, the efforts which you are putting it right now, Right. कि to give value addition to the Right. students, Right, sir. lot of learning to the students. That is what something you need to do different. So when we talk about now coming towards branding, Branding. अब ये प्रोडक्ट के बारे में बात की, we talked about say STP, segmenting, targeting, positioning, 4 P's of marketing and 7 P's of marketing. Right, sir. Now coming towards branding, a brand, say I give you an example. Distillery is a brand. Brand. The same product without label is not brand. No brand. Now, if you want to differentiate it, you can differentiate it on the basis of brand name. Right. Okay, that is, name should be very catchy. Catchy. Google, Right. it's a very catchy name. Yes. URL google.com. Right. तो URL भी it should give a message Right, sir. कि मैं ये URL किसका है, Right. या जो नाम पर से थोड़े बंदे को आइडिया आ जाना चाहिए क्या टाइप की कंपनी है. Right. लोगो अट्रैक्टिव बनाना चाहिए. It could be a symbol. Even I'll tell you, जो बरसों से चला आ रहा है, Om Oh, is a brand. brand. It talks about Hinduism. Right, sir. Cross, Cross. Christianity. Wish. It talks about, that's a brand since thousands of years. Right, sir. तो वो कब से चला आ रहा है, वो अगर कहीं भी दिखता है तो we understand that it talks about this particular reel. Right. So that is how you need to have brand names. Right. Sandeep itself is a brand. Right. Right, sir. Sunil itself is a brand. We need to develop this brand. We need to add value to this brand, and that you can do it by creating a difference. Right, sir. Now, some examples I would like to share with you. These are certain examples. BMW. BMW. If I ask lot many people कि इसका full form क्या है, तो पता नहीं, नहीं, किसी को भी पता. किसी को भी नहीं पता. Right, sir. But we know this. वैसे ही like companies are putting lot of efforts in building the brand. Right, sir. एग्जाम्पल देता हूं मैं, डेटॉल का. Dettol. हाँ, डेटॉल ब्रांड है. Right, sir. आज किसी को भी पता होगा कि कहीं पे कट हो जाता है, एंटीसेप्टिक है, यूज करना है तो वो तुरंत डेटॉल लगा देंगे. Right, sir. ओके, एंड दे हैव क्रिएटेड दैट इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर Customer. कि वो ये लग गई तो बोला Dettol लगा. हाँ डेटॉल. बोला. तो वो एंटीसेप्टिक, लोगों के दिमाग में एंटीसेप्टिक फर्स्ट कम्स डेटॉल. Right, sir. तो ये पोजीशनिंग कितना होगा. अब मैं पूछूं डेटॉल कौन सी कंपनी का है, रैकेटमैन का है. Right. बहुत कम लोगों को पता होगा Right. कि ये कंपनी है जिसने ये ब्रांड बनाई हुई है. Right, sir. काफी लोगों को पता ही नहीं है. डेटॉल सबको पता है, Right, sir. लाइफ बॉय सबको पता है, बट वो कौन सी कंपनी का वो पता नहीं. Right, sir. सर्फ एक्सेल सबको पता है. Mhm. सो दीज आर द पीपल दोज हु हैव क्रिएटेड ब्रांड्स एंड दे हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन बिल्डिंग दिस ब्रांड. Right. खूब पैसा खर्च खूब किया है. बहुत सारी, लाइक आई शो यू वन एड, वंडरफुल एड है. ले लो. हाँ हाँ ठीक है. कौन सा? Yes, ये दस एक मिनट, कोको कोला ने कॉलगेट लाइफ बॉय पोस्ट कर दो एक मिनट. This is a campaign which is, see again, advertising is something doing creative. Okay, you need to create a campaign which is very creative, and this is a campaign which was created at Kumbh Mela. कुंभ मेला क्या है, जो 12 साल में एक बार आता है. Right, sir. और वहां पे ऑलमोस्ट, बहुत पब्लिक. हाँ, करोड़ों में करोड़ों public में. है. वहां करोड़ों में पब्लिक आती है, तो आपकी ब्रांड का अगर फुटफॉल हो जाए, वहां पे रजिस्टर हो जाए, तो दोस पीपल आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर. 100%. तो बहुत बढ़िया सिंपल सा कैंपेन. राइट. और सारी ब्रांड्स है वहां पे अटैक करती है रियली. हाँ. क्योंकि इतने सारे ऑल इंडिया से सारे मतलब ऑल इंडिया के ऑल वर्ल्ड से लोग वहां पे आते हैं. और कम खर्चे में मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट. तो एक बहुत बढ़िया इन्होंने क्या किया था, लाइक व्हेन यू लुक एट दिस कैंपेन. और रियल में लोगों को ऐसा भी लगता है कि ब्रांड बनाने में
पैसा ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा तो कोई भी लगा देता है, लेकिन कंसेप्ट सबसे यूनिक है। आइडिया, आइडिया, क्रिएटिविटी। तो ये बहुत बढ़िया क्रिएटिविटी है। यू विल बी सरप्राइज, आई एम श्योर यू माइट हैव नॉट सीन दिस एड, बट आफ्टर लुकिंग एट इट, बोलो इतना छोटा सा कंसेप्ट था। दिख रहा है, स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, साउंड नहीं है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, म्यूट। सेम वे कॉलगेट ऑल्सो डिड। राइट, कॉलगेट। हाँ, वो कॉलगेट करो, वो भी कुंभ मेले में ही किया था उन्होंने। उनका अलग था कैंपेन, बट इट वाज आल्सो नमस्कार। कुंभ के मेले में आपका स्वागत है। यहाँ बिछड़ा हुआ भाई मिले या न मिले, पर आपको भारत का नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट कोलगेट का 10 रुपए का छोटा पैक जरूर मिलेगा। तो इंतजार किस बात का, जल्द से जल्द पूरे परिवार के साथ परेड ग्राउंड सेक्टर 3 पे कोलगेट स्टॉल पर पधारिए, देखिए जादूगर का तमाशा और पाइए मौका बहुत सारे आकर्षक इनाम जीतने का। हमें आपका इंतजार रहेगा।
So both these ads, like they were targeting the customers at that point, like, Right, sir. and there were many other brands, Right, like they were doing the same activity to attract more number of customers. राइट सर, मेन चीज जो सर मुझे लगती है कि पैसा तो कहीं ना कहीं ठीक है, जो आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, आइडिया Idea. आइडिया ही आपकी ब्रांड को एक दूसरी कंपटीटर से यूनिक बनाता है. राइट सर, Creativity. Creativity. कुछ ना कुछ नया नया. जो किसी ने नहीं किया है. Right. I'll tell you with respect to creativity, अभी शादी का सीजन चल रहा है. Right. अभी तो शादी के सीजन में इनविटेशन कैसे भेजते हैं? व्हाट्सएप व्हाट्सएप में ही वो फोटो खींच के भेज देते हैं. राइट सर, But this was certain years back prior to COVID. राइट एक कपल था, आईटी कपल था, Hmm. दोनों आईटी किए हुए थे बंदे. Right. दोनों ने ऐप बना दी थी. राइट एंड दैट वाज अ वेरी वंडरफुल क्रिएटिव आइडिया Hmm. कि ऐप बना दी थी. वो ऐप की लिंक आपको भेज दूंगा मैं. Hmm. वो आप ऐप इंस्टॉल कर दो तो पूरे जो प्रोग्राम का शेड्यूल है उसमें रहेगा. आपको कौन से टाइम पे आना है, इवेंट की लाइव Okay. उसमें आप देख सकते हो, फोटो भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते ओके. हो. और उसमें जिसको इनविटेशन भेजा है आपने राइट सर, वो ही इंस्टॉल कर पाएगा. 100%. हर किसी को इंस्टॉल नहीं कर राइट सकता. सर, तो कितने लोग आने वाले टुडे शादी में 1000 रुपए की डिश तो आराम से रखते हैं. 100% सर, अब 1000 रुपए की डिश तुमने 5 लोग आने वाले थे, 5 लोग नहीं आए तो मेरा तो वेस्ट हो गया. 100% तो देना ही पड़ेगा मेरे को. राइट सर, So this is again helping in managing the things also. राइट सर, So when you are doing your, say, using some creativity, this was, I heard it on the radio station only. Hmm. This was done by some couple, and this was really wonderful. Right? पर अभी कोई मैंने बाद में सुना नहीं किसी ने और ऐसा सर किया. मेन चीज सबसे इम्पोर्टेंट में अगर जिन लोग भी गुजरात में हैं और उन लोगों ने अभी इलेक्शन की कैंपेन देखी होगी, राइट सर, हाँ, वो भी कुछ यूनिक एड्स लेके आ रही है. राइट सर, कुछ ना कुछ नया लेके आ कुछ ना कुछ न्यू लेके आ रहा है. If it is something which is imitated, हाँ. copied है तो कोई देखने वाला और नहीं. मेन चीज मैंने सर एक चीज और देखी है कि ब्रांड बिल्डिंग में वो ये है कि एक ही कम्युनिकेशन को आप रिपीटेड यूज करोगे ना तो भी आपको हार्म पहुंचा रहा है. तो जितने भी ब्रांड में देखा कुछ ना कुछ यूनिक एड्स लेके आ रहा है, सेम कम्युनिकेशंस लेके आ रहा है. जैसे मैं अभी नरेंद्र मोदी जी का पूरा कैंपेन का एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी एड्स उसमें क्या रिपीटेड है देखा आपने? 100% देख रिपीटेड और मींस एम्बुलेंस वाला रिपीटेड है. 100%. तो बार बार यही वर्कआउट करा कि ब्रांड बिल्ड करना है तो सबसे मेन आइडिया तो होना ही चाहिए, लेकिन आइडिया रिपीट, एक भी आइडिया को मैं एक साल घिसूंगा तो चलने वाला नहीं है. उसमें कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा. राइट सर, So when we go for branding, what we need to do is we need to keep the brand name very catchy. Right. I'll give you certain examples over here which talks about very like how you need to do your branding. राइट सर, Means एक तो name है, slogan है, फिर the literary meaning of that particular brand. I'll tell you, Vicks अपने Vicks. यहाँ famous है, but वो Right. जर्मनी में नहीं चलती. ओके, क्यों? आई डोंट नो. हाँ, क्योंकि Volkswagen को क्या बोलते हैं अपने? Volkswagen बोलते हैं. राइट सर, It ओके is known as Volkswagen. Right. वहाँ पे Vicks को Fix बोलते थे, and it has a different meaning. ओके. So literary meaning वहाँ पे क्या होता है? If you go with the same brand name, and there, I'll tell you, there is a book which is known as 101 brands why they failed. It could be because of idea, it could be because of culture, it could be Right. because of PR relations. अब जैसे ही like Ponds is known for what? मतलब जो पुराने जो चीजें होती है उसको बेचने के लिए. नहीं, Ponds cream, cream, Ponds cream. राइट, अब Ponds cream, moisturizing cream and for Right. external application. अब Ponds toothpaste निकाला था. राइट. कोई लेगा? नहीं, It didn't go. Because बाहर लगाना है तो ठीक है, but when you wanted to have it, it does not. Ponds cream कैसे रहेगी? Next Ponds toothpaste, it was a failure, massive failure. So idea failure भी होता है कभी-कभी. How your brand is being used and what is the application of it, Right, sir. that is very important. So Apple again, ये लोगो जैसे बनाया है, जिसने सोच के बनाया है, बहुत बढ़िया है. राइट. Keep it simple, avoid unusual spellings. But again, there are certain things like when we say, particularly some brands, they purposefully make it a spelling error into it. राइट, 100% करते हैं सर. राइट. जैसे I'll show you some of this over here. Wait. I'll come to that point. Before that, let me see. This brand name should indicate business category. राइट सर. Means when your brand is into red bus है, तो राइट. बस सर्विस दे रहा है. Means राइट. उससे आइडिया आ जाएगा ये क्या कर रहा है. मतलब वो कहीं ना कहीं उस वर्ड को ऐड कर रहा है. राइट सर. So when you say
digital Sandeep Academy. Right, sir. So it will say something that okay, कोई academy है Right. जहाँ पे कोई something related to digital. you Right, know. sir. So you need to do your branding in that way. Right. So drugs.com, Hmm. it means you will be getting medicines. Medicine. Similarly, 99acres.com. 99 So acres. acres means Acres, मतलब acres is inland. Land. So here you will get land and Hmm. real estate, something real with respect Right. to that. So these are certain unforgettable brand logos, which we Right. can say Amazon. Again, Amazon logo is very right. unique. Smiling. Smile is there. Then A to Z. Right. Meaningful. Meaningful. When you create a brand logo, Right. it should have, all logos have got one or the other meaning, because there are a lot of आज इंडियन रूपी का जो लोगो बनाया है, वो लोगो बनाने के लिए भी lot of exercise गवर्नमेंट ने इनफैक्ट Right. leave it open to the जनरल पब्लिक that कोई भी अच्छा लोगो लेके आओ जिसका कुछ मीनिंगफुल सेंस होता है, तो that would be accepted. Right. So these are Tesla, Maggie, Maggie, right. Google. These are and certain brands alliterating means which are repetitive. Right. Brand builder, Hmm. brand and builder means Builder, Range Rover. Range Rover, right. Sir. So you can have it in that way. Hero, Hero, Honda, Honda. American Airlines, Right. Burberry, Tasty Treat, Blackberry, Kit Kit Kat. Kat. This helps in remembering the thing. So Right. that when you wanted to promote it, Minute Maid, Right. TED Talks, Hmm. PayPal. PayPal. Now it should be indicated a broader category. Right. Now when we talk about Uber, Uber. Uber Eats भी आया था, but it didn't do. नहीं चला. हाँ, Right. means if you wanted to like what we say have difference into like अलग-अलग business start करने Right, sir. हैं, diversification करना है, that same Sister brand, companies, whatever. same brand can be used. Right. Sir. So it should be in a broader sense, Right. broader category. Amazon नाम इसलिए दिया हुआ था कि Amazon river भी है, Right. लंबा river है, and that is a forest also, which talks about the size of that Right. particular thing. Then personalized. Hmm. All this, they are named, these companies are named behind certain names. Right. People those who People. founded. Right. It is by Jamsetji Tata who Tata, founded it. right, sir. Aditya Birla, Hmm. it was Seth Shiva Narayan Birla, Right, sir. he founded this. Similarly, Dell, it was Right. Michael Dell Right. who created this. So most of the brands, even those people, those founders are not no more now. Right. Sir. If you talk about Apple, Steve Jobs who founded, but it is not there. Right. So Disney, Walt Disney was the person who founded it. So they've named it. This is Gillette is also named behind the King Kemp was the person who founded Right. this King Kemp Gillette. So Abbott is again founded by Wallace Kelvin Abbott. Right. He was the person who founded this. So Henry Ford was the one who founded Ford Motors. Then Adidas is again Adolf Dassler. So Eddie and Dassler is Right. Adidas, how they have named it. So you can brand it either by the category of business, either by the name of the founder. Right, sir. This is how you can go for branding it. Levis is again the name of Levi Strauss, Right. the person who founded this Levis. Porsche is Ferdinand Porsche who founded this. Now, use of catchy name. Hmm. All these brands are very catchy. Google, Google. Yahoo, Yeah. Coke, Zippo, GoDaddy. So your brand name should be in such a way which can be Right. easily recalled. Right, sir. क्योंकि अगर confusing brand name होगा, then it becomes difficult for you to recall. नहीं मतलब लोग सर ऐसे ऐसे नाम लेके आते हैं. हमारे यहाँ पे एक स्टार्टअप चलता है. DSA incubation center स्टार्टअप. हाँ, Right. जैसे ही Right. पहले किसी ने Google सुना होगा तो ये Google क्या है? हाँ. Now, but once it is used Use. by everyone and everybody Right. started talking about Google, Right. then it became a big brand. So Right. what question you have in Right. your mind कि बहुत नाम अटपटे होते हैं पहले Right. तो सुनने में. अब जैसे ही मैं ये कैडिला फार्मा, Right, sir. कैडिला हेल्थ केयर थी पहले, Hmm. और कैडिला हेल्थ केयर it was divided into two company, कैडिला फार्मा एंड जाइडस कैडिला. Right, sir. तो जाइडस कैडिला का एक डिवीजन बनाया उन्होंने, बोला कैडिला का नाम तो अपने को रहना ही चाहिए, Hmm. तो उसने एलिडेक बना दिया. Hmm. Okay. CADILA Okay. एलिडेक उल्टा कर दिया, Okay. तो उसका एक डिवीजन बन गया. Right. अब पहले किसी को एलिडेक Hmm.
अच्छा नहीं लग रहा, बट व्हेन यू कीप ऑन सेइंग एवरी डे, Right, sir. प्रॉब्ली वो अच्छा हो गया. सो स्टार्टअप के नाम बहुत अटपटे होते बहुत हैं. अटपट है ना, और वैसे वर्ड भी आते हैं सर कि कभी कभी हम प्रोनाउंस करने में इतनी दिक्कत आती है, हाँ. तो मैं लोगों को बोलता हूँ सिंपल नाम, अगर आप नाम ही रखना चाहते हो तो ऐसा नाम लिखो जो हर कोई प्रोनाउंस कर सके. जैसे एग्जांपल, अभी क्या हम इंडियन है, तो कभी कभी बोलने में जैसे कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, तो सिंपल नाम रखने चाहिए, और लेंथी ऐसे 3 नाम को मिला के ब्रांड नेम नहीं रखना चाहिए. सो नाम ऐसा होना चाहिए हाँ. जो कैची हो, राइट सर. जो easy to remember हो, राइट. it had some meaning in the with respect to that particular business, Right, sir. or it should be with respect to the founder. राइट सर. और ये जैसे क्लू दे रहा है, law and order, Right. means it talks about law and order. राइट. Loan and order Hmm. means it talks about something which is with respect to loan services. राइट सर. तो pots and pen, राइट. राइट सर. तो जो कैटेगरी का बिजनेस है Hmm. उसमें है, तो से intentionally misspell मिसस्पेल. means जो नाम फेमस है, Right. जैसे ये एग्जांपल है Xerox, Xerox. Zero. Zero. This is also known as Zero. But Cloud. Zero is well known and Right. Zero is a brand. राइट सर. These are international brand. Cloud है तो उसको CLOUD Cloud. राइट सर. Lift है तो LYFT कर दिया है. Tumblr है तो TUMBLR निकाल दिया. राइट सर. Reddit तो Right. Reddit. These are all big brands. 100%. ये सर, फ्लिकर इज बिग ब्रांड. टम्बलर भी है, टम्बलर अभी चल इतना प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, लेकिन ये But बहुत ये इंटरनेशनल ब्रांड Right. है ज्यादातर. बट कहने का मतलब है कि वही जो नेम वेरी फेमस है उसमें तुम अब स्पेलिंग चेंज करके कर दो, दैट इज आल्सो Yes. गुड आइडिया. राइमिंग होना चाहिए. राइट. लंच बंच क्रंच. अब जैसे बोले तो वड़ा पाव. वो बोले तो बड़ा अब जिसने भी सोचा हाँ. यार खेतला पाव बीच में आया था, खेतला पाव राइट. फेमस हुआ था, राइट सर. तो खेतला पाव फेमस हुआ था क्यों, किस वजह से, और फिर इमीडिएटली जब लोग आपकी कॉपी करने लगे ना, तो हाँ. समझो कि ब्रांड फेमस हो गया. राइट सर. क्योंकि इमीडिएट किसका करते हैं, अमिताभ बच्चन के दो वो फेमस है, राइट सर. शाहरुख खान की तो वो फेमस है, 100%. या सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट में Famous. तो वो फेमस है. जो भी हाँ. फेमस, जो भी चीज का इमिटेशन होना शुरू हो जाए मार्केट में, तो समझो आपकी ब्रांड फेमस हो गई. राइट सर. So these are certain examples which talks about rhyming, राइट. how names are created. Right. This is what will give you an idea. नाम कैसे बना. Nike, तो Nike it is a Greek goddess of victory. राइट सर. तो उन्होंने, जैसे सर ने बताया कि कोई भी ब्रांड का नाम कभी रखते हैं, नामकरण विधि करते हैं, उसका मीनिंग, अपने आज बच्चों का नाम भी रखते हैं तो उसमें नाम उसका मीनिंग मीनिंग होना चाहिए. तो लोग पूछते भी है कि भाई ये ब्रांड का नाम तुमने रखा, इसके पीछे क्या मीनिंग क्या है. सो एवरी ब्रांड हैज Right. गॉट अ हिस्ट्री राइट सर. कि वो नाम कैसे रखा. राइट. और वो हमेशा हिस्ट्री बनानी भी पड़ेगी, लोग आस्किंग अगेन एंड अगेन सर. तो दिस इज Right. लाइक कोका कोला का नाम क्यों रखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोका लीव्स एंड कोला बेरीज, राइट सर. so that's why कोका. Similarly पेप्सी तो पेप्सिन डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है, राइट. तो इसके अंदर पेप्सिन होता है, राइट. इसलिए दैट इज रिलेटेड टू पेप्सी, दैट इज हाउ Right. इट इज नेम्ड. Amazon biggest river in the world, Nokia No. city in Finland, राइट सर. तो वो वहां से फाइंड हुआ था. जैसे IKEA IKEA भी it is named after the person and the person from that particular village. राइट सर. तो similarly Nokia वहाँ फिनलैंड की सिटी में से जहाँ से the first it was introduced over there. Vodafone it is voice data and telephone, राइट सर. so Vodafone वैसे Right. नाम. Okay, Volkswagen व्हाट्स. it is people's car, लोगों के लिए है. राइट सर. Microsoft is micro computer and software, so Software. Microsoft. Soft. Nivea is a Snow White, means Nivea की cream white आती है and Right. it is for glow purpose, Right, sir. and that's why they have named it as Nivea. This again a very important thing, मैंने Vicks वाला example दिया. Right, sir. Vicks तो वैसे बहुत सारे examples हैं हाँ. जिसका meaning जो भी कंट्री में लॉन्च कर रहे हैं Right. वो वेरी इंपॉर्टेंट है. Right, You need sir. to understand, otherwise it would be a massive failure. मैसिव है. बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी है राइट. जो फेल. ब्रेड का मीनिंग हाँ. नॉटी चिल्ड्रन होता है, Right. रशिया में बैगर होता है. राइट सर. सो इफ यू आर यूजिंग दैट वर्ड हाँ. इन सम ब्रांड पर्पस, देन प्रोबब्ली यू नीड टू चेक करके वहां मीनिंग क्या होता है. राइट. जैसे कुकी, कुकी. हाँ. ओके, राइट. ये अपने यहाँ बिस्किट होता है, Biscuit. हंगरी में इट इज स्मॉल पेनिस. राइट. अच्छा. ओके. तो वहां पे मीनिंग मींस इफ यू से इट इज एंटायरली डिफरेंट मीनिंग. डिफरेंट. राइट सर. सिमिलरली ये किस इंग्लिश में टच विद लिप्स, राइट. स्वीडन में इट बिकम्स यूरिन. यूरिन. ओके.
तो वहां पे तुम यू कैन नॉट यूज दैट वर्ड। राइट सर, मतलब आपको अगर आप अपनी ब्रांड को इंटरनेशनल बनाना चाहते हो तो आपको हर जगह के वर्ड को पहले देखना पड़ेगा कि नॉट ओनली वर्ड, Word. देयर आर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच Right. यू नीड टू अंडरस्टैंड, वहां का कल्चर, Culture. वहां का फूड हैबिट्स। राइट सर, आई टेल यू, जो यहाँ जो ब्रांड फेमस कॉर्नफ्लेक्स, कॉन्फ्लेक्स, जो Right. फेमस ब्रांड थी, Right. यूएस में चली, Hmm. इंडिया में नहीं चली। राइट सर, क्यों नहीं चली थी? बिकॉज यहाँ का कल्चर नहीं था कि Right. सुबह उठ के दूध में कॉर्नफ्लेक्स कौन खाएगा। हम्म, और अपने यहाँ इंडिया में हैबिट है, वी हैव अ हैबिट ऑफ हैविंग हॉट मिल्क। Right. हॉट मिल्क में कॉर्नफ्लेक्स डालो तो वो एकदम Right. सोकी हो जाते हैं। राइट बट कॉर्नफ्लेक्स को अगर डालना है तो ठंडे दूध में डाल के पीना है। राइट, और यहाँ पे गर्म दूध राइट सर, तो यहाँ पे चला नहीं। फिर उन्होंने क्या सोचा, फिर रिसर्च किया यहाँ पे, एंड देन दे टारगेटेड कि बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तो वो चॉकलेट फ्लेवर में कॉर्नफ्लेक्स लेके आए। राइट सर, एंड देन दे थॉट दैट ओके, बच्चों और मम्मी को टारगेट किया, के कॉर्नफ्लेक्स राइट सर, 100%, विद न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, So that is how they targeted that specific set of राइट customers. सर, So these are certain like crepe है तो रबीस है रवि सर, इंग्लिश में crepe। अब वहां पे फिश सैंडविच होता है Right. रोमानियन। ओके, So you need to be very careful. राइट, These are again few more examples. Right. रबर इंडियन इरेजर होता है, यूएसए यूरोप में Right, sir. कंडोम होता है। यस, So these now the last part which we are going to cover is Hmm. this is about branding, how you राइट, need to go. यस सर, ब्रांड कैसे बनाना है, ब्रांड नेम कैसे देना है, लोगो Right. कैसे बनाना है। सो दिस वाज, as I told you, it is an entire subject, you need to go वो through बहुत it. है सर, राइट सर, So advertising, now coming to the last part where we'll be talking about different techniques used in advertising. राइट सर, तो advertising में कैसे advertising करते हैं? मतलब सर देखो मेन चीज है कि भाई हमेशा यूएसपी वर्कआउट करते हैं कि हमको हाईलाइट क्या करना है, पहला पॉइंट। दूसरा कि हम ये देखते हैं कि लोगों को कम समय में टारगेट करना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैसेज क्लियर, मैसेज क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें पहले जैसे एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट के लिए सोचता हूँ तो मैं जो भी एड्स वर्कआउट करता हूँ मैं प्लेसमेंट को लेके वर्कआउट करूंगा, ठीक है, या मैं your USP, राइट, be it at that particular Right. age, when student is studying something, he is more worried about his career. राइट सर, And when he is worried about his career, ये पढ़ने से मेरे को फायदा क्या हो? क्या तो राइट, सीधा ही आप बोलोगे कि ये पढ़ लोगे आपको इतने की नौकरी मिल जाएगी, 100%, या आप अपने इतने का बिजनेस स्टार्ट करो। राइट सर, So you are serving that particular purpose. राइट, So you are hitting the right customer, Right. with the right target. The message is very clear. You do this much, and this is the need. This is growing right Right. now. And if you have this particular skills, there is a huge opportunity for you in front of you. 100, In the market is very Yes. open. So that is what Hmm. now different tools and techniques which are used for advertising. राइट सर, आप एडवर्टाइजिंग जैसे बोले डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो राइट, एक तो हो सकता है कि now to whom you need to target, यस, जो प्रोडक्ट ले सकते हैं सर, means Right. जो after 12th those who Right. are coming and हाँ मतलब जो एग्जाम्पल सके 12 पास आउट होने चाहिए, ग्रेजुएशन भी कॉम बीबीए कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, सेल्स वाले हो, तो देयर इज अ बायर पर्सोना जो हम लोग क्रिएट करते हैं। so all those people Right. who can grab that particular basic information with respect to that particular राइट, knowledge. राइट, So that is what I'll tell you certain techniques which are used over here. Celebrity endorsement. राइट सर, This is something which only big companies can afford it. राइट सर, जैसे ही अभी when we talk about Shahrukh Khan, Akshay Kumar and Ajay Devgan, three big brand ambassadors Right. of दाने दाने में केसर का स्वाद। राइट सर, अब ये इतनी बड़ी कंपनी अफोर्ड कर सकती है, राइट सर, जिसकी CSR एक्टिविटी है कैंसर हॉस्पिटल, राइट सर, हाँ 100% सर, 1 रुपए में कैंसर ट्रीट करते हैं, मगर पहले आप ये खाओ तो कैंसर होगा। तो कैंसर होगा तो आप आज देंगे हम सर, ठीक है भाई। So why celebrity is being used when we talk about advertising? सर फेस वैल्यू या उनके फॉलोअर्स, Yes. राइट सर, So when we talk about अभी जैसे मान्यवर, तो किसको एंडोर्स किया था? हाँ, रणवीर सिंह था, उससे पहले विराट कोहली था। विराट कोहली, राइट सर, So they were the only couple means at that point of time. तो उनको टारगेट किया, this would be the ideal couple in the country, so that they would be. So you need to have the right person. राइट सर, Means अगर वो स्पोर्ट वाला बंदा है तो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के लिए एंडोर्स करोगे। राइट सर, So it depends upon the crowd which is which
is following him. 100%. Okay. So celebrity endorsement, we can see lot of ads are there. Right, sir. मतलब जो भी फीमेल प्रोडक्ट है उसमें फीमेल को टारगेट किया है, Obviously, राइट सर। obviously. It is necessary. Right. अब कई बार ऐसा होता है कि आपको कस्टमर रूरल मार्केट में है, अब Right. वहां पे वो आप शाहरुख खान को एंडोर्स करोगे राइट सर, वो मतलब तो नहीं है। राइट सर, अब रियल एस्टेट की ये बात करूं मैं, इफ यू वांटेड टू have some celebrity or some people whom you wanted to target in this particular site of satellite or Right. Vastrapur या this particular Right. तो आप ऐसी फैमिली ढूंढोगे Hmm. which is familiar or Right. which looks good. 100%. अब आपको वटवा साइड कोई स्कीम चल रही है, वहां पे अगर वही फॉरेनर जैसी फैमिली का फोटो लगाओगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। वहां पे आपको वो जैसे वहां कम्युनिटी जैसे लोग रहते हैं वहां पे people Right, relate to you. Okay, so these are this is very common celebrity endorsement. आजकल इंस्टीट्यूट में भी बहुत celebrity 100%। endorsement चल रहा है। अब विराट कोहली का बात करेंगे तो सर ऑलरेडी चल ही रहा है ना, ग्रेट लर्निंग में चल रहा है, लॉट ऑफ प्रोडक्ट जो लोग यूज कर ही रहे हैं, शाहरुख खान में ग्रेजुएट पे चल रहे हैं, राइट सर। Okay. Then testimonials Right. plays a very important. Right. What is testimonials? Testimonials is something which is someone who has used that particular product. राइट And when he is satisfied with that particular product, he can say, आप बोलते हैं ना LinkedIn में होते हैं testimonial. Right, sir. आप मेरे को testimonial लिख दो मेरे बारे में. 100%। Means I have provided रिकमेंडेशन, services to राइट सर, So those who have used it, and Right. sometimes अब ये paid भी होता पेड पे है. 100%। रिव्यू डिजिटल मार्केट में आपको 100%। पता है कि एक रेस्टोरेंट के रिव्यूज मेरे को 500 रिव्यू लिखवाना है तो वो लिखने वाले भी Right, sir. मिलते हैं 100%। डिफरेंट आईडी से. राइट, आज तो सर ऐसे सर्विसेज भी है फाइवर पे कि प्रोडक्ट बताइए, मैं आपको वीडियो टेस्टिमोनियल बना के देता हूँ, राइट सर। बिकॉज देयर इज अ क्राउड. अब वो देखने वाले को पता नहीं है पेड है कि, Right. बट अब जैसे ये बात अब सबको पता चलने लगेगी कि ऐसे ही होता है. हाँ. अब जेन्युइन कोई भी रिव्यू देता हो तो तो वो वैसे. वैसे ही लगता है, राइट सर, 100%। सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू ये है. कभी हो सकता है आपने वो एड देखी होगी, हाँ. मूवी एंटरटेनमेंट वाली थी मेरे ख्याल से, कौन सी? जिसमें अक्षय कुमार था, वो कोई ऐड कर रहा था. हाँ, हाँ, अपनी बड़ी ये पहले ही Right. फर्स्ट सीन में ही राइट सर, हाँ हाँ हाँ। वो फिर ऊपर वो लगा के वो मोटा बन जाता है और Right. फिर वो बोले ये ऐसा हो जाओगे, राइट, हाँ हाँ, मैं समझ आपकी गया। बॉडी वैसी हो जाएगी. Right, तो sir. दिस इमेजेस Hmm. आर समथिंग व्हिच इज एंड दिस इज एग्जैजरेशन. राइट, एग्जैजरेशन ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग में एवरीथिंग इज नॉट राइट, मैंने बोला ना कि कंघी बेच के आओ और Right. उसको अब हाउ स्मार्ट यू आर इन सेलिंग दैट. 100%, So marketing is not 100% accurate also, राइट सर, and we can say you need to be very genuine in using marketing. राइट सर, क्योंकि exaggeration से एक बार कस्टमर आ जाता है, एक बार यूज करता है. अब ये सब मार्केटिंग में क्या होता है कि तुम्हारा टारगेट इतना ही है कि एक बार ही यूज करे, हाँ दोबारा ना आए. हाँ, I'll tell you most of the places टूरिस्ट स्पॉट्स है, हाँ सर, वहां पे जाओ 100%। वहाँ पे तो मतलब एक आदमी को मतलब बेवकूफ बन जाता है, बस. राइट और वो उनका टारगेट यही है क्योंकि वो दोबारा आने वाला नहीं है. राइट, यहाँ तो हर रोज नए कस्टमर आते हैं हाँ और आपको बार्गेन, आपको गारंटी देगा आप वापस दे जाना. आप इतना तो अब वापस थोड़ी देने जाओगे. 100% कोई ऐसा होता ही नहीं है। और मतलब वहाँ पे होता है कि हम गारंटी देते हैं वापस देना, उसको पता है कि जो एक बंदा लेके जा रहा है 500 किलोमीटर से आया कभी भी है. आने वाला नहीं। Now Wessel's word, हाँ, it is imply a promise by using words like usually or chance. राइट सर, Means again this is an exaggeration. These are certain ads. अब राइट। मेरी साइज इतनी थी, अभी नहीं हो गई. मैं पहले पहले मोटा हुआ करता था, अभी मोटा पतला हुआ। हो गया। बट अब ये, अब देखो ये भी ऐसा होता है. राइट सर, These are certain ads where we look at this राइट, and probably we हम जैसे when you talk about तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट के वहां ज्यादा चलता है. हाँ आज लोगों को किसी को बूढ़ा नहीं होना है राइट, और किसी को गंजा नहीं होना है. राइट सर, डॉक्टर बत्रा, बतरा आज तक डॉक्टर बत्रा को किसी ने देखा नहीं होगा. नहीं देगा सर, सही बोल रहे हैं। और उसकी ब्रांचेस कितनी सारी, बहुत सारी सर, और बहुत। वहां पे कोई डॉक्टर कोई बत्रा नहीं है. राइट, देखिए सर अभी जैसे वो पोजिशनिंग है कि भाई डॉक्टर है तो वहां पे जो एग्जाम्पल ये सारे देखोगे तो वो बाल के ही देखेंगे, राइट सर। और वो टेक्नोलॉजी इतनी यूज करेंगे, ये Right. बताएंगे वो बताएंगे, और आपको मींस दे विल ट्राई टू ब्रेन वॉश कि ऐसा ना हो जाओ, अभी करवा दो, राइट सर, इमीडिएटली. Right. आपका डिसीजन सेकंड थॉट नहीं आने देना. राइट सर, आज कोई भी टेलीफोनिक जो टेली सेलिंग है या फिर कोई भी 1-to-1 सेलिंग होता है ना, दे वोंट गिव यू अ चांस Right, फॉर sir. सेकंड थॉट. Right. क्योंकि आप वहां से चले गए सेकंड थॉट के लिए, राइट सर,
जैसे तो माइंड चेंज हो जाएगा हाँ, सर। तो माइंड चेंज वो आपको वही पे बोलेगा कि आज के लिए ये ऑफर ऑफर है, है। आज ही लिया तो इतने में, कल आप आज- आओगे तो मैं आपको सर मॉल में जैसे एग्जाम्पल मॉल में जाते हैं तो एवरीडे 50% सेल ऑफ ही है। आज गए तो भी 50%, कल जाऊंगा तो भी 50% है। अब आई टेल यू लाइव मैं सीजी रोड पे एक स्टोर है हाँ। जहाँ पे वो पूरे साल ऑफ ही चलता बट है। पहली बार मैं जब सीजी रोड पे गया तो हाँ। मेरे को लगा कि यार आज कितना लकी हूँ मैं, आज ही दिन आ गया जहाँ पे ये सेल लगी हुई है, Right, वरना एक दिन लेट हो जाता तो शायद सेल चली जाती है। बट बाद में उसके सामने मैं रहने लगा तो मेरे को लगा, पता चला हॉस्टल में रहता था वहां पे, Right. तो ये तो साल भर सेल चलती है क्योंकि जो आते हैं वो तो राइट, वो फर्स्ट टाइम ही होते हैं सर। so see here what you can see less wrinkles हाँ। in only minutes। राइट सर। अब ये पॉसिबल है और वो भी चेहरा देखो किस कैसे से कैसा हो जाता सर वो भी इसमें एक वर्कआउट ये भी हो सकता है कि जैसे एग्जांपल मैगी 5 मिनट में, है 2 मिनट 2 मिनट सर, 5 मिनट तो ज्यादा हाँ, बोल दिया, तो- 3 मिनट 2 मिनट। तो सर ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉड है वो, ये है कि 2 मिनट में मैगी, लेकिन रेडी नहीं होती तो फ्रॉड, ये बोलते हैं फॉल्स प्रॉमिस या क्या बोलेंगे इसको। नहीं Right. सी मार्केटिंग इज ऑलवेज एग्जैक्टली राइट सर। कोई भी प्रोडक्ट आज शैम्पू की एड देख लो, हाँ कोई भी शैम्पू बोलेगा कि आपको कंप्लीट डेंड्रफ, तो वो सिल्की क्या बोलते हैं सिल्की या राइट डेंड्रफ, सर। तो वो उनकी एड में भी 2-3 स्पॉट रहने देंगे, 100% वो बोलेंगे वो 100% क्लियर नहीं 100% है। क्लियर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इतने में इतना कम, सही बात है। there is no guarantee warranty to any product or services Right. when you talk about, but it is again Right. people are using it, Right. marketing ऐसे ही होती है, हाँ। चलती है, that is true, but Yeah. 100 में से 50 लोगों पे काम कर रहा है, 50 पे नहीं कर रहा राइट सर, हाँ वो ऐसे रहता है। है, and you need only those number of, राइट, अब आपके लिए आपकी प्रोडक्ट के लिए जैसे डॉक्टर बता रहा है उसके क्लिनिक पे जाते ही है लोग, 100% जाती है सर। और तभी तो इंटरनेशनली लेकिन क्लेम्ड है। लेकिन सर एक पूरा हाइप क्रिएट कर रहा है डॉक्टर बता, लेकिन डॉक्टर बता वहां पे है ही नहीं। वहां पे होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं जो पास आउट होते हैं, राइट सर। बट उनके वहां जो जैसे एडवर्टाइजमेंट, हाँ। माहौल एंड ऑल दोस थिंग्स आर वेरी Right. इंपॉर्टेंट। नाउ दिस तो आल्सो सर इसको ये नहीं बोलेंगे जैसे फर्स्ट मूवर कि डॉक्टर बत्रा ने सबसे बड़ा मार्केट को पहले कैप्चर करना स्टार्ट किया ब्रांडिंग मार्केटिंग करके, वो भी हो सकता है फर्स्ट मूवर था, मतलब जैसे एग्जाम्पल लोग तो फिर बाद में आए जो हेयर ट्रांसप्लांट ये सब चीजों को लेके। अब उनके वहां एक कोई सेलिब्रिटी भी गया होगा तो उनका वो एडवर्टाइजमेंट है यूजिंग Right. एडवर्टाइजमेंट। ओके, आज को आपको अच्छी तरह से पता ही है कि कैसे होता है। राइट सर। So yeah, these are like Colgate, Right, that sir. fight germs for 12 hours. राइट, This is again one more this what do we say whistle voice. राइट सर। This make a miracle happen. राइट सर। कि आपके बाल तुरंत स्ट्रेट हो जाएंगे या दिस मिरेकल नाम ही राइट, प्रोडक्ट का मिरेकल दे दिया है, Right. तो सुनने में लोगों को लगेगा जादू कर देगा और हाँ। ओके नाउ दिस इज समथिंग ये भी बहुत होता है स्किल स्किल। एडवर्टाइजिंग, आज डिजिटल मार्केटिंग में ही ज्यादा होता है मैं बोलूँगा कि आप प्रोडक्ट इतनी दिखाते हो एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट एज बिगर और स्मॉलर देन द रियल लाइफ। राइट सर। अब वो रिंग इतनी बड़ी दिखाई होगी, Right. आप लेने जाओगे तो बोले इतनी छोटी रिंग, छोटी दिखी है, बराबर सर, बर्गर इतना बड़ा आता है, ओरिजिनल लेने जाओ तो इतना ही बर्गर है, बराबर सर। तो दिस एड्स यू कैन सी राइट सर। ये इसमें क्या लगाया होता है, हाँ, इसमें आर्टिफिशियल हाँ, वो तो एडवर्टाइजमेंट advertise. करता है ना, But sir, this is not good for the long-term brand building. that is true. Negative marketing will be happening and that customer will not. But see again today I say that marketing is very important, branding is very important, but still there are people who would not be completely relying upon marketing. आज मार्केटिंग कितनी अच्छी कर रहा है वो आपको पता है कि भाई मार्केटिंग में ये होता है, बट रियल अब मैंने यूज किया है, मैंने आपको बोल दिया यू ट्रस्ट मी, सो यू आर गोइंग टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वो भी होता है। अब ये ऐसा दिखा रहा है दिस इज नॉट गुड, बट अब आपको पता है ये तो दिखा, लेकिन स्टिल यू लाइक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हेन यू आर गोइंग ओवर दैट। देखिए मैंने एक It's चीज, overall brand building. na, हाँ। Like Kia and Tata. Right. Trust. राइट If I go buy any Tata, it have trust राइट for return. But Kia, I don't have right now. राइट, लेकिन सर मैंने एक इट देखा टेक्स कि टाइम। अब किया के लिए ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए दे हैव कम आउट विद दैट, ओके इट इज समथिंग वेयर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, एंड सी आफ्टर दैट्स व्हाई आई सेड ब्रांड, it takes time to build a brand. राइट,
आप सर कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं यहाँ पे ये ऐड ऑन कर रहा हूँ सर कि बहुत सारी चीजों में कैसा है कि ब्रांड को पता है कि मेरा प्रोडक्ट खराब है, ठीक है, और दे गेटिंग अ नेगेटिव रिव्यू, बट वो मार्केटिंग इतनी एग्रेसिव मोड पे करता है कि न्यू कस्टमर एक्वायर कर ही है। मैं सर ये देखा 100%। जैसे एग्जांपल एक जूम कार का मैं आपको बहुत लेटेस्ट सिनेरियो बताता हूँ, जूम कार का, ठीक है। जूम कार का एक्सपीरियंस बहुत बैड है, मतलब आप जिसने जूम कार यूज किए ना सर, आप उसको पूछोगे वो कभी नहीं बोलेगा जूम कार, लेकिन दे आर एग्रेसिवली डूइंग द मार्केटिंग, क्योंकि उनको पता है कि जिसने यूज किया वो तो यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन जो ऐसे लोग भी हैं जो मेरे न्यू कस्टमर बन सकते हैं, वो एक चीज मैंने देखी इसमें। तो वो मतलब प्रोडक्ट खराब है, जैसे आप बोल रहे हो कि बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन जो लोग पहली बार आ गया, जिसने अनुभव ले लिया, वो तो रिकमेंडेशन नहीं लेगा, लेकिन मार्केट बहुत ओपन है, 130 करोड़ की जनसंख्या है। That's very correct. Because Right. आपको कितने चाहिए? राइट, From this much big population, you just only wanted 0.005. राइट सर, मैंने ये 100% देखा है कि प्रोडक्ट खराब है, लेकिन एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा है, उसको पता है कि मुझे 30 ही चाहिए और 50 ही चाहिए। So here also you can see ये ad कितने कि ये रिंग इतनी बड़ी आती है, Right. असल में लेने जाओ बहुत तो दिखेगी भी नहीं, इतनी रिंग होगी। Right, sir. So this is something exaggeration. Name calling. राइट, Name calling is using unsavory terms about the competition in order to make the product look better. Like जैसे characteristics of that particular brand, Right. Duracell. So the name itself that Ah. okay, the cell which is going to have a longer durability, राइट, or Energizer. Right. So this is you need to brand it in such a way कि नाम के अंदर ही उसका जो characteristic है, राइट, which is an important characteristic for that particular brand, Right. should be covered. Okay. हाँ, this is one more very important thing. Advertising fear से भी करते हैं, Right. insurance वाले company. 100% सर। आप अगर टायर वाली कंपनी, हाँ, आप बोले और कोई टायर होता तो आप मर जाते, मर जाता है 100%, सीएट था इसलिए आप बच गए। बच गए। So this is if you don't brush your teeth, हाँ, you will lose your teeth. That is what negativity, नेगेटिविटी, fear. This is again vibes. राइट, So all this are अगर ये BMW की एड है हाँ, कि spare parts for human are not as original as those for car. Don't drink and drive. राइट सर, If you drink and drive, हाँ. accident हो जाएगा। तो आपका ये 100%, this is something which is with respect to fear. There are a lot of brands which are being advertised with respect to fear. yes, Similarly, bandwagon. राइट, Bandwagon is what? पूरा देश कर रहा है, हाँ. मैं क्यों रह गया? राइट, So everyone is doing it, or this means everyone is going for it. बीच में fidget spinner, हाँ, वो क्या था? हर किसी के हाँ, अब उसको नया नया नाम दे दिया था लोगों ने कि क्या इससे आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, असल में किसी का स्ट्रेस रिलीव हुआ ही नहीं, बट एवरीवन वाज कैरिंग, हर किसी के बैग में था, और जब भी फ्री होता था तो वो घुमाता रहता था, एंड देयर पीपल वर मेकिंग a huge amount of money from 10 rupees to 1000 rupees के fidget spinner मिल रहे राइट हैं। सर, So something which everyone was selling. हाँ, तो ये दिस इज एन इंडियन मेंटेलिटी। आई टेल यू, आप कोई ब्रिज से गुजर रहे हो, वहां पे देखोगे 4 लोग ब्रिज के नीचे देख रहे हैं, वेट करेंगे, तो तुम वेट करके क्या हो रहा है उसको भी पता नहीं है, मगर तुम भी उसके साथ जुड़ जाओगे। Right. सो दिस इज बैंडवैगन, यू कैन फाइंड इट। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं एडवर्टाइजिंग में कि हैमबर्गर ओवर 100 मिलियन सोल्ड। राइट सर, जैसे मारुति बोलती है 25, अभी ये किया वालों ने हाँ. शायद कि 50,000 कस्टमर हो गए एंड यू आल्सो कैन बी अ Right, पार्ट sir. ऑफ इट। राइट तो सर, इतने सारे हो गए और मैं रह गया, Right. तब जाके उस लाइन में आप भी जुड़ जाओ। राइट सर, सो द ड्रिंक एवरीबडी नोस, राइट, सबको पता है, अगर आपको पता नहीं है तो यू आर आउट ऑफ दैट कल्चर। राइट सर, सो ये दिस इज समथिंग व्हिच बैंडवैगन सॉर्ट ऑफ राइट सर, मींस हर कोई कर रहा है और आपको भी करना चाहिए। अब ये एक है, दिस इज एडवर्टाइजिंग टेक्निक व्हिच इज वेरी वेल यूज्ड, हर जगह यूज होती है, बाय वन गेट वन फ्री। राइट सर, कुछ भी बेचना है बाय वन गेट वन फ्री, फ्री दे दो, तो वो क्या है आपको ग्रीन। Great. आज मोस्ट ऑफ द पिज्जा आउटलेट्स, वो क्या पिज्जा 500 रुपए का पिज्जा, 1000 रुपए का पिज्जा होगा, आपको 500 रुपए में राइट सर, बाय वन गेट वन फ्री। अब पिज्जा की उतनी कॉस्ट होगी आप सोचो, नहीं होगी, बट यू आर रेडी एंड ऑन दैट स्पेसिफिक डे यू विल गो, कि हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, राइट, ट्यूसडे ऑल्टरनेट डे दे विल गिव इट। राइट, सो दिस इज हाउ बाय वन गेट वन फ्री। फ्री, This is bribery. राइट, In short, they wanted, they are bribing the राइट, customers in to attract the customer. राइट सर, So these are different techniques which are used for advertising purpose. Humor, humor is also being used. राइट, कि जहाँ पे if you are able to
persuade the customer Mhm. and make them happy, then probably they are going to buy your product. Right. Say for example, this is something. Right, उसके बाल देखो और ये लगाने के बाद उसके बाल सिल्की हो गए. sir. So Godzilla is awesome except when he is angry. Right, sir. So ये sneaker की ad है. Right. Because their crowd is what? Mhm. Children's. Right. And probably they like cartoon sort of thing, so that is being attracted over here. McDonald का भी है very funny ad which creates humor, बच्चों के लिए है. So it shows that is for children's and Right, sir. that cow is sitting over there. Then comes warm and fuzzy. Certain examples over here will be like sentimental images, family, kids to sell the product. Right, sir. They are using sentiments over here. Hmm. हाँ, इमोशनल अटैचमेंट. Emotional, right. आपको इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप साल में घूमने तो जाते ही होंगे. So so this is something which is used. Pets are used. अभी यहाँ पे emotion is being used. Happy meal, a family which is happy with that after having happy meal. 100%. Somewhere beautiful people are being used. So these are different techniques. See, the list is endless. You can come out with some creative ideas and you can start advertising your product. Right. So it could be with good people, good idea. Like I'll show you one more ad which was done by Coca-Cola. It is what we say interactive ad in terms of now today artificial intelligence and that sort of technology is being, you want to spend more time with the customer or engagement, customer engagement. आपने शायद this Alibaba has started Starbucks in China, Right, sir. शंघाई में. तो वहां पे कोई बंदा कॉफी पीने कैसे जाएगा? सिर्फ कॉफी नहीं पिएगा, वो जाएगा तो it is into 30,000 square feet. Right, sir. तो इतना सारा अंदर है एंगेजमेंट के कॉफी कैसे बनती है, फिर सिर्फ कॉफी नहीं पियोगे, you will have some more thing also. Right. And lot of games, lot of points to engage the customers. तो अभी दिखाता हूँ मैं वो ad. This is using Pinterest. wonderful people. Models. Models. Yes. Scientific evidences. This is being done. Right, sir. और ये 100% ये कहाँ पे आता है scientific evidences? ये प्रोडक्ट्स में है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मोस्ट ऑफ वहाँ पे जहाँ पे some historical evidences of अभी जैसे आपने इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, किसका दिया था आपने, लाइफ बॉय का. उसमें तो वो साइंटिफिकली बताता कि भाई 199 पॉइंट समथिंग means Right. this many people are dying because of diarrhea. राइट सर. और डायरिया किससे होता है? लोग हाथ से खाते हैं, हाथ आपके धोए हुए नहीं है तो Right. डायरिया हो जाएगा. And that too specifically they have targeted rural market. राइट सर. क्योंकि सिटी में तो लोग स्पून यूज करते होंगे बोले, बट यहाँ पे लोग हाथ से ही खाते हैं, Right. बिना हाथ धोए बैठ गए और and that creates a problem. राइट सर. So that's how scientific मतलब evidence. शरीर से रिलेटेड जैसे डायपर भी हो गए सर, उसमें भी बहुत सारी चीजें बता रहे हैं साइंटिफिक. So ये देखो लोरेल का यहाँ पे दिया हुआ है 90% of soft facial features softened and referred in 1 week. राइट सर. Means some statistical figure कि ये लोगों पे ट्रायल किया था and that Right. it has shown the result in 1 week कितना डिफरेंस आता है, 2 weeks में इतना डिफरेंस आता है, 4 weeks में इतना डिफरेंस आता Right. है. So this is again you can see over here राइट. the changes in certain week 31% reduces lines by 31%. राइट. अब 31% उसने कैसे मेजर किया होगा I don't know, but you look at this figure Right. and probably you get attracted. So this is marketing. And many products Right. you will find where sexual images in Right. terms of this I'll show you certain ad. राइट सर. Now this has nothing to do with the perfume, Right, sir. fragrance, but now Skechers also राइट. you see, but this is also with human psychology. राइट. You will see these ads, you will feel that okay I should go for that particular product. राइट. Age target. Age target. इसमें वो उसकी भी ऐड आती थी अपने perfume- डिओड्रेंट्स की ऐड ज्यादा आती है ऐसे, बट उसमें कोई ऐसा मैजिक नहीं होता है जैसा दिखाते हैं. राइट. उसको जाके बोलना पड़ता है कि आई हैव यूज्ड दिस डिओड्रेंट, Right. तब जाके बोलेगा हाँ ठीक है. राइट. वैसे पता नहीं चलता. कहने का मतलब है कि means उसमें तो ऐड दिखाते हैं वो डिओड्रेंट लगा के जाता है तो चारों ओर से लोग आ जाते हैं. Then health nuts, this is means you need to prove that it is healthy for you. राइट. हाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या मैगी लेड कंटेंट रिमूव करने या कैडबरी मींस अपना जो व्हाट वी से
नहीं Kellogg's नहीं, अपना पाउडर विच इज दैट मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर, अमूल या फिर बॉर्मिटा या दिस टॉक्स अबाउट Bournvita, हेल्थ, right. उसमें वो हेल्थ फोकस Right. करते हैं, दे आर Right. टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड दे विल शो दैट इट इज गुड फॉर योर हेल्थ. Right. तो हैप्पी मील, this is like Right. hold the cholesterol, not the mayo, means you can go with that mayo which is cholesterol free. right, sir. And oh pretty uses beautiful, intriguing, colorful images to catch the attention. You can see the images will be created in that way. Right. Now today when you use such images, obviously that is going to be eye catching, Right. and that's why people will the images which are created, probably that has nothing to do with the product itself, Right, sir. but still they're using it. Problem solver. सबसे मेन. हाँ, यहाँ पे आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बताओगे जहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. Right. देखो ये है, मींस ये दिखाया हुआ है कि प्लेन एस्पिरिन डज नॉट वर्क एज फास्ट एज ब्रूफेन. Right, sir. मींस ब्रूफेन से ही काम होगा, इट्स सॉल्विंग योर प्रॉब्लम हेडेक Right. है. सिमिलरली ये भी एरिपिप्राजोल है, व्हिच इज फॉर एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन के लिए है, उसकी ऐड दी हुई है. सो यू फ्रॉम दिस still the list is endless, Right, but right. you can take नहीं up सर, आपने बहुत मतलब बहुत कम टाइम में बहुत सारा ब्रीफ नॉलेज दे दिया. हाँ. सबसे इम्पोर्टेंट सर के ब्रांड बनाए कैसे, स्टार्टअप करते एक नाम सोचने से लगा के टारगेट करने से लगा, तो बहुत कम समय में सर आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया. अब सर कुछ क्वेश्चन ले ले. Sure, sure, ठीक है, sure. और कुछ आप पूछना नहीं, चाहते हो? बस this is I am done with my side. ओके सर. And if you have any questions, we Right. can. So guys, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन तो बहुत अच्छा किया. रोशन, now any question guys you want to ask regarding branding, advertising, whatever you learned today? Any questions? Raise the hand, everyone. Okay. Okay. So पहले आप अपना वेबकैम स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है? Any question you want to ask guys, everyone, book on branding feature please, ठीक है? Please everyone guys fast quickly वेबकैम ओपन कर लीजिए एंड मैं आपको क्वेश्चंस के लिए ऐड करता हूं. एंड बहुत या रियाज अनम्यूट कर सकता हूं. या Hi sir, first of all thanks for your valuable time sir. थैंक यू. सर मेरा एक क्वेश्चन है, पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? जो वोडाफोन का जो एड है पुश में आता है, पुल में आता है? Okay. See, when the company is putting lot of efforts initially at the initial stage, जब नई प्रोडक्ट है तो आपको पुश करना पड़ता है. राइट. And that push may turn into a pull marketing once people are aware about it. और फिर लोग सामने से डिमांड आने लगे, then it becomes a pull. So initially at the initial stage, awareness stage, you are trying to push your product also. You are trying first because see advertising के objectives क्या होते हैं? There are different objectives. पहले नई कंपनी है, नई प्रोडक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना. दूसरा ऑब्जेक्टिव, थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद यू वांटेड टू परस्यूएट द कस्टमर टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके. और थर्ड उसके बाद कि यू आर इंसिस्टिंग हिम कि आप जैसे ही मैंने एक वो बोला बैंड वैगन वाला कि आप रह गए, बाकी सबने ट्राई कर लिया है. गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द लास्ट पार्ट कि पूरे अहमदाबाद ने ट्राई कर लिया है, अब आप अकेले रह गए, तो आप भी जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते आ जाओ. आप इस माहौल means this particular product you should not miss it. That is what. Okay, so push and pull is in that way. और ये मेन चीज सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हर मार्केटिंग का या ब्रांडिंग का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें करना क्या है. पहला पॉइंट, आज क्वेश्चन क्या करना है, हमें टारगेट किसको करना है, हम किस वे से टारगेट करना चाहते हैं, यूनिक क्या है, वो एक अपने को पूरा साइकोलॉजी, पूरा पॉइंट राइट डाउन करके. अभी ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही एड में मैं सब टारगेट करूं, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? अभी जैसे एग्जांपल वोडाफोन की एड सर ने बताई, तो सेगमेंट 1 to 1 डिफरेंट एड थी, एक ही एड में सब डाला हुआ नहीं था. सो हर एड को बनाने के पीछे एक स्पेसिफिक वर्ड को लेकर हाईलाइट करना. लोग जैसे देखते हैं सर, रोड साइड में देखता हूं कि बहुत सारे होर्डिंग होते हैं, चाचा बाबा भतीजा सब डाल देते हैं, लेकिन बिग ब्रांड का एड देखते हो एक सिंपल कम्युनिकेशन होता है. मतलब एक एड में सब चीजें नहीं डाल के स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करना. ओके. अब देखो वही एड हो सकती है एक कस्टमर के लिए पुल थी और एक कस्टमर के लिए पुश होगी. समझ में आया? जिसके लिए वो अवेयरनेस नहीं है, जो जानता नहीं था, उसके लिए वो कंपनी पुश कर रही है.
मीन्स इट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस कि इससे ये फायदे होते हैं। वोडाफोन से आप डेटा यूज कर सकते हो, फेसबुक एंड ऑनलाइन चैटिंग वगैरह वो सब कर सकते हो। एंड फॉर दोज हु आर यूजिंग इट, इट वाज अ पुल। मैं यूज कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद इट एंड आई विल कंटिन्यू विद इट। क्लियर? Then thank you guys, thank you so much for asking first of all. Now next question, और guys किसी का क्वेश्चन हर्ट्स वेबकैम स्टार्ट कीजिए फास्ट। एंड गाइस आज का एक सेल्फी लीजिए हमारे साथ में और टैग करना मत भूलिएगा। सुनील सर आपका इंस्टाग्राम कुछ है, यूज करते हो? करता हूं मैं, बट आई डोंट रिमेम्बर माय इंस्टा आईडी। ठीक है, आई एम नॉट दैट सेवी इन यूजिंग सोशल मीडिया। ठीक है। नाउ हर्ट्स क्वेश्चन प्लीज। सर हमने बहुत बार देखा है कि जो स्टारबक्स है सर एक स्ट्रैटेजी यूज करता है कि हाँ। उनके कप पे उनके रॉन्ग नेम्स लिख देता है। तो सर हम इसे नेगेटिव मार्केटिंग में देखें कि पॉजिटिव में देखें? रॉन्ग नेम मींस उसका स्पेलिंग गलत लिख देते हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल सर, यस सर। ओके। तो सर इससे अल्टीमेटली स्टारबक्स को ये भी फायदा होता है कि वो स्टोरीज उनकी पुट होती है मतलब सोशल मीडिया पे कि है ना स्टारबक्स इतना बड़ा ब्रांड होकर एंड देन वो ये चीजें मिस्टेक्स कर रहा है। अब देखो इसमें दो चीज हो सकती है, बट स्टारबक्स इतनी बड़ी गलती तो कर नहीं सकता कि गलती से वो प्रिंट हो गया और बोले अब मैं ये माल कहाँ वापस भेजूं, इससे अच्छा मैं यूज। एक्चुअली सर बात ऐसी है कि वहाँ पे जो कप्स होते हैं ना, लाइक इंडिविजुअली अगर कोई पर्सन है उसका नाम लिखते हैं ना पेन से, सो जो एम्प्लॉइज उनके वो नाम लिखते हैं उनमें वो थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं। वो जानबूझ के करते हैं या? हाँ सर, मोस्ट ऑफ द टाइम जानबूझकर भी वो चीजें होती है। नहीं, जानबूझ के नहीं होता होगा क्योंकि नाम देखो अब अपने भी। हाँ कई। हाँ ओके, इसमें सी लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, मैं स्टारबक्स में गया नहीं, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट गिविंग यू आंसर। हो सकता है नाम आज स्पेलिंग डिफरेंट। अब शीतल लिखते हैं तो शीतल कैसे लिखते हैं? SHEETL लिखते हैं, SHITAL, यस सर। तो इट इज अप टू हाउ यू आर स्पेलिंग इट। और तुम स्पेलिंग नहीं बताते तो उसके दिमाग में जो आया उसने लिख दिया। और पहला चीज सर, जहां पे एम्प्लॉय है वो पढ़े लिखे, पहला पॉइंट इंटेंशनली ही उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ऐसा किया जाए, ठीक है। तो मान नाउ से ऑब्जेक्टिव वो कुछ ब्रांड का कुछ कैंपेन का उनका भी होता होगा, ठीक है, क्योंकि जो वहां पे एम्प्लॉय है वो पढ़े लिखे, वो हर एक नाम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते। हाँ 100 लोगों को दे रहे उसमें एक हो सकता है वो ठीक है, हाँ। लेकिन 100 के 100 नाम गलत है, इसका मतलब दैट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, राइट? हाँ, अगर अब ग्रेट लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे? GREAT। हाँ, तो GR8 लिख दूं तो ग्रेट हो गया। हाँ यस सर। तो हो सकता है वो उनको वैसे इनोवेटिवली नाम नई तरीके लिखना चाहते हो। सर ये बहुत बड़ी केस स्टडी आई थी सर स्टारबक्स की, तो सर दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन पुट किया था। वेरी गुड, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट, इन फैक्ट यू ब्रॉट इट इनटू माय नॉलेज आल्सो। थैंक यू। थैंक यू सर। होप गाइस आज का सेशन अच्छा रहा। तो आप लोगों को एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ गाइस, टैग करना मत भूलिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सर के लिए थोड़ा सा स्पेशल हमारी तरफ से, राइट। और आप लोग सर को भी टैग कर सकते हैं, मैं आईडी भेज दूंगा, वहां पे टैग कर लीजिएगा। हाँ नहीं वो हो गया। और किसी को डाउट्स कैसे सेशन कैसा आप पहले तो टाइप कीजिए कैसे फास्ट क्विकली। जबरदस्त क्या रहा आज का सेशन गाइस, टाइप कीजिए। एंड ऐसे सेशन के लिए और एक्साइटेड हो तो टाइप करते रहिए। जबरदस्त एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू संदीप सर फॉर इनवाइटिंग। अरे सर आप आने के लिए थैंक यू सो मच सर, प्लीज थोड़ा First sponsor. Thank you. Thank you, sir. Really great. Thank you, sir. So guys, thank you so much. आप लोग जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत अच्छा रहा। कोई डाउट्स क्वेरीज है आपके गाइस? लास्ट क्वेश्चन, एनी लास्ट क्वेश्चंस गाइस? ओके रियाज, ठीक है या रियाज प्लीज गो अहेड। सर ये जो जब नया ब्रांड हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो व्हाट आर द 3 पॉइंट्स जो हम ध्यान में रखने चाहिए जैसा कि? Okay, quickly 3 points, very important points which you need to. Your brand is new into the market, people are not aware about it. Okay, now first is तुम्हें कॉम्पिटिटर का पूरा स्टडी करना चाहिए, होमवर्क अच्छा करना चाहिए। होमवर्क अच्छा होगा तो probably you will be able to hit the right store. ओके
तो होमवर्क करने में क्या पता चला तुम्हें कि कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी प्राइस कैसी है, उसका प्रमोशन कैसा है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ये 4 पीस उनके अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद यू हैव टू डिफरेंशिएट योर 4 पीस। ओके, अगर उनकी प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल नहीं है तो पहले तो तुम्हें अपनी प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल करवानी पड़ेगी। उनके प्रमोशन में जस्ट होर्डिंग्स लगा रहे हैं तो तुम बोलो होर्डिंग्स तो अपने लगाएंगे, उससे ज्यादा कुछ करना है एडवर्टाइजिंग। ओके, सो दिस यू नीड टू सी। अगर नई प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली इफ टोटली कोई मार्केट में ही नया है तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, मगर कोई आज तो मोनोपोली वाली प्रोडक्ट तो है ही नहीं, ज्यादातर मी टू प्रोडक्ट ही है। मी टू प्रोडक्ट क्या है कि ऑलरेडी मार्केट में है और तुम ला रहे हो दूसरी प्रोडक्ट, तो तुम्हें कंपटीशन में रहना है। तो व्हाट दे आर डूइंग इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस। तो क्रिएटिव बनना है, डिफरेंस लाना है। अगर तुम वाटर बॉटल लेके आ रहे हो जो मार्केट में ऑलरेडी मिल रही है, तो तुम्हारी वाटर बॉटल कैसी होगी, उसकी डिजाइन ऐसी होगी कि आसानी से होल्ड कर सके। ओके, उसका प्लास्टिक मटेरियल अच्छा होगा। सो ऑल दिस बिकम्स यूएसपी so that you can use that for promoting it. Thank you, thanks a lot, thank you guys, thank you sir, thank you guys आप लोग जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट संडे को और एक्साइटेड दीजिए, सैटरडे को बहुत जल्द आपके लिए और यूनिक लेके आ रहा हूँ। सरप्राइज मैं आपको देता रहूंगा क्योंकि मैं सरप्राइज पहले नहीं बताता हूँ, सरप्राइज हमेशा एंड में अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट संडे को हमारे साथ में और हस्ती जुड़ने वाली है, बहुत नॉलेज आपके साथ में देने वाला है। तो नेक्स्ट संडे को जो टॉपिक हमारा रहेगा वो ई कॉमर्स को लेकर आएंगे हम लोग, राइट। तो ई कॉमर्स बड़ा सब्जेक्ट है, ई कॉमर्स में कैसे सेटअप होता है, किस वे से होता है, जबरदस्त सेशन होने वाला गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर।